A very good evening to all of you. Today, on behalf of the Crime Free Bharat team, I welcome you all to this live interactive session 3 of Crime Free Bharat National Police Mission MM06. From the words of Annabel France, to accomplish great things, we must not only act but also dream, not only plan but also believe. Project Crime Bharat is a vision of Sri Maithili Sharan Gupta, Special Director General of Police, Police Reform Madhya Pradesh. Today's topic is Crime Free Bharat, analysis of peer review of proactive policing and visualizing future challenges. There were three members of the peer group approved by the National Police Mission Division were given the project for review. Sri GP Singh, ADGP Chhattisgarh, he has approved the project. Sri Umesh Saraf, ADGP Telangana, he has disapproved the project. Sri TK Vinod Kumar, ADGP Kerala, he has, with some observations, he has disapproved the project. There are five prime objectives of the Crime Free Bharat, which is already there on this channel, but still for ready reference, I am citing it here. One, certainty of registration of FIR. Second, certainty of detection of crime. Third, certainty of conviction. Fourth, prevention. Fifth, rehabilitation of criminals. And along with this, there are some others. With this, I would like to introduce all the guests today which we have. And I will start with Sri Mr. Lalit Sastri ji. Uh, Welcome, sir, to our show. I just want to introduce sir. He is editor in chief, newsroom247.com, and he is a journalist, columnist, wildlife documentary maker, and environmentalist. He has headed the Madhya Pradesh Bureau of the Hindu and the Asian Age, two of India's leading English newspapers, for more than 2 decades. He has been Child Right Observatory. He has been a consultant with UNICEF and is founder member of Child Right Observatory Madhya Pradesh. He is also the founder president of Crusade for Revival of Environment and Wildlife, the annual Central Indian Highlands Wildlife Film Festival, a focused wildlife and conservation awareness program, is being implemented by CREW. Mr. Sastri had quit a corporate job to investigate the cause leading to the 1984 Bhopal gas disaster and has authored Bhopal Disaster, an eyewitness account. His book Political Mirage is a collection of his columns on Madhya Pradesh published in the Hindu in the decade of the 90s. Sir, a very warm welcome to this show. And sir, our second guest is Mr. S. Nitin. Mr. S. Nitin, sir, welcome to our show. He is an educationalist for past 16 years, having successfully established engineering colleges and a junior college. He is also the director of Genesis Solutions Private Limited, a renowned software training institute in Hyderabad. Prior to this assignment, he worked with various companies in India and abroad in senior sales position. He brings along with him more than 20 years of experience of direct project and product sales in healthcare and IT industry. He did his bachelor's of engineering in electronics and communications engineering from Osmania University. And and sir, we should not forget, sir, that today is 82nd Foundation Day of CRPF. And with this, I would like today to introduce among ourselves a very special guest we have, sir, today. Welcome, ma'am, Mrs. Taslima Khan. Ma'am, she is second in commandant CRPF, serving for more than 30 years. She was part of India's peacemaking mission in Sri Lanka in the year 1989 and was also a part of United Nations peacekeeping mission sent from India to Liberia in the year 2009 and 10 and posted at several sensitive areas like Jammu and Kashmir. She is also a recipient of President Medal for her meritorious services in the force. She also rendered her services in communal riots affected places in Meerut in the year 1991, Aligarh from 2002 to 2006, Delhi in the year 2020, and has been a part of Rapid Action Force for more than 10 years. A very warm welcome to you, ma'am, because today it's your day as it is the 82nd Foundation Day of CRPF. And sir, our fourth panelist is Mr. Hariom Avasthi. Sir, he is presently working as an assistant professor of law in Prestige Institute of Management, Gwalior.
He has completed his LLM from the NLIU Bhopal with dual specialization in constitutional law and administrative law in the year 2013. Presently, he is pursuing PhD from Jivaji University, Gwalior. Sir, in the our fifth guest is Mr. Vishal Kumar. He is a National Youth Convener BJP, ex-convener Management Cell of BJP in Delhi State, and he has worked with ex-president of BJP, Mr. Manoj Tiwari. And most importantly, sir, we have another most important guest, that is Dr. Prem Agarwal. Sir, he was a former judge. He has given his resignation, and now he is a professor of law, head of department, Hooghly Mohsin College. I am welcoming all these illuminaries in our shows, and we are expecting that today we will have a very powerful session. Sir, I would request first of all to Taslima ma'am. Ma'am, recently we have got to face this in the year 2000 Delhi riot. We would like to know your experience, and can will we able to prevent this much of riot if we are equally equipped with the technologies which we are talking today? तस्लीमा मैम. क्राइम फ्री भारत और अपराध मुक्त भारत एक बहुत ही बेहतरीन कदम है भारत को अपराध मुक्त करने के लिए, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ श्री मैथिली शरण गुप्त जी की, एडिशन डीजीपी, जिन्होंने मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आने का सौभाग्य प्राप्त किया और मुझे अपने ख्यालात प्रस्तुत करने की सौभाग्य दिया। और सभी गेस्ट का भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर सुनने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी, पीयूष जी ने जो एक सवाल किया है दिल्ली के 2020 के दंगों से मुतालिक, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सीआरपीएफ का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कहीं पर भी। हम लोग जो होते हैं स्टेट पुलिस के अंडर होते हैं और स्टेट पुलिस के द्वारा जो हम बुलाए जाते हैं, तो जो डायरेक्शन हमें स्टेट पुलिस के द्वारा दिया जाता है तो उसके थ्रू हम लोग करते हैं। मेरा जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है, मेरा 34 साल का सीआरपीएफ में एक्सपीरियंस है और मैंने 2087 में मेरे ट्रायल्स जब स्टार्ट हुए थे एंड 91 में हुए थे, 2002 और एंड 2006 अलीगढ़ में जब हुए तो मैं रैपिड एक्शन फोर्स में जॉब कर रही थी और वहीं पर अलीगढ़ में तैनात थी। और अभी जो ये 2020 के यहाँ पर राइट्स हुए हैं तो लोकल पुलिस के साथ हम लोगों का तालमेल होता है। लोकल पुलिस, जहाँ तक मेरा ये मानना है कि अगर हम सिविल पब्लिक के अंदर अपना कॉन्फिडेंस पैदा करें, तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई मुजरिम है जिसके अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं, तो अगर हमारा पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो उनको अगर हम उनके अगेंस्ट भी कर रहे हैं तो उनको खराब नहीं लगता है। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कॉन्फिडेंस से मेरा मतलब ये है कि जब तक हम उनको नॉलेज नहीं देंगे कि मतलब ये गलत है, ये सही है, ये फॉर एग्जांपल आप लोगों की आपके हक में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो तब तक आई मीन कि उनको जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक उनको ये कम्युनिकेट नहीं होता है कि हमारे फेवर में हो रहा है या अनफेवर में हो रहा है। तो जहाँ हम जाते हैं, अगर पुलिस और पब्लिक के बीच में तालमेल होता है और सिविल पब्लिक के अंदर अगर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है तो हम आसानी से उनको हैंडल कर सकते हैं। और जो स्थिति होती है, जो बेकाबू हालात हो रहे होते हैं, उनको हम कायदे से कंट्रोल कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ 2006 अलीगढ़ का। तो जिस वक्त राइट्स हुए, ऑल ऑफ सडन राइट्स हुए थे, वहां पर हम लोगों की सबकी मीटिंग्स हो रही थी, तो वहां पर क्या था, लेक ऑफ कम्युनिकेशन था। आपस में जनता के बीच में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था। जब फिर बार बार मीटिंग्स ली गई, पब्लिक्स की जो
सिविल नुमाइंदे थे, उन सब लोगों को जो जिम्मेदार लोग थे उनको बिठा करके मीटिंग्स वगैरह दिया गया और उनको कम्युनिकेट किया गया, तब जाकर के वो रॉयट्स उनको कम्युनिकेट हो गया और फिर हम लोगों के पास आते थे। वो वहां तकरीबन 2-2.5 महीने के करीब कंटिन्यू कर्फ्यू रहा था। हम लोगों के पास आते थे कि देखो हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये जरूरत है। तो धीरे धीरे एक बार जब रॉयट्स हो जाते हैं ना, उसको फिर रिफॉर्म में आने में बहुत वक्त लगता है। एक यकीन दिलाना, मतलब रॉयट्स हो गए हैं, आप यकीन नहीं दिलाएंगे तो वो उस लेवल में नहीं आ पाते। फॉर एग्जाम्पल हमारी और पुलिस की छवि मैक्सिमम खराब इसलिए होती है कि पब्लिक में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। पब्लिक को ये नहीं मालूम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एफआईआर उन्होंने लॉन्च कर दिया है, एफआईआर एक एप्लीकेशन दे करके आने के बाद वो ये सोचते हैं कि हमारा एफआईआर हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब तक हम उनको ये नहीं बताएंगे कि एफआईआर किस तरह से लॉन्च होता है, क्या इसका मतलब पैरामीटर्स हैं, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेजेस हैं इसकी, तब तक उनको अवेयर नहीं होते हैं वो लोग। और जहाँ अवेयर नहीं होते हैं तो फिर वही पुलिस के लिए वही आ जाता है कि पुलिस करप्टेड है और जब तक आप पैसा नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो हम अगर एक बार उनको अवेयर कर दें, जैसे बीच बीच में पुलिस का एक काम ये होना चाहिए, मेरा जो अपना सजेशन मानना है कि जो मतलब जिम्मेदार लोग हैं उनको मंथ वाइज मीटिंग किया जाए, उनको अवेयर किया जाए कि किस तरह से कहाँ पर क्या होना है और किस तरह से ये प्रोसेस होना है। तो मैं मानती हूँ कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस का लेवल पैदा होगा और जहाँ कॉन्फिडेंस आएगा वहीं पुलिस की छवि अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और लोगों को एक राह मिल जाएगी और पैनिक नहीं होंगे लोग। छोटी छोटी सी बात में जैसे र्यूमर्स हो जाते हैं कि आपके अगेंस्ट में ये कर दिया गया, आपके अगेंस्ट में ये कर दिया गया, तो बीच में जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं अगर उनको अवेयर किया जाएगा और उनको गाइड करेंगे तो इन चीजों से बचा जा सकता है और पैनिक होने से भी बचा जा सकता है। और जो वर्स्टेस्ट कंडीशन होती है रॉयट्स वगैरह में या किसी भी र्यूमर्स के थ्रू, उन सब चीजों से हम पुलिस की छवि बच सकती है। आपका प्रश्न क्या है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तस्लीमा जी जो है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो मैं आपको, आज विशेष दिन है, आज सीआरपीएफ का रेजिंग डे है, तो मैं आपको रेजिंग डे के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और शायद आपको जानकारी होगा कि मैं भी सीआरपीएफ का हिस्सा रहा हूँ। आई वाज आईजी ऑपरेशंस कश्मीर। Very nice, 2007 and 2008 में आई वाज आईजी ऑपरेशंस कश्मीर इन सीआरपीएफ। मैं आपके प्रश्न का जवाब जो है दो तरीके से देना चाहूँगा। एक तो ये है कि हम जो है पब्लिक से अपेक्षाएं करते हैं। पब्लिक एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नहीं है, हम एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है उसका ये दायित्व है कि वो बड़ा काम करे, वो जो है लोगों में विश्वास दिलाए। हम इसका उल्टा नहीं कर सकते। हम जो है यदि आप ये चाहें कि हम उसको उल्टा करके और पब्लिक से अपेक्षा करें कि पब्लिक सब कुछ करे, तो ये कदापि ठीक नहीं है। ठीक है ना? मुझे याद है जब मैं एसपी भोपाल था और सीआरपीएफ की टुकड़ी जो है जो यहाँ पर लगी ना होती थी, वो हमारे साथ आके पहले से अभ्यास करती थी। तो जब पीस टाइम है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि हम पहले से ही फोर्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दें, तो सीआरपीएफ की वो टीम जो कि वहाँ डिप्लॉय होने वाली है, उसको अपराधियों के बारे में जानकारी होगी, अच्छे लोगों को बारे में भी जानकारी होगी, और उसकी जो डिपेंडेंसी है वो लोकल पुलिस के साथ साथ उसकी अपनी एक जो है ना एक पहचान भी होगी, एक अपना रेपो होगा और वो एक अच्छा काम कर सकता है।
तो मैं इसका उदाहरण देता हूँ कि जब मैं काशीवीर में था तो हर गांव के बारे में जो डाटा सेट हमने तैयार किया था वो इतना ज़्यादा डिटेल में था कि जब पुलिस को कोई चीज़ की जरूरत होती थी तो वो हमसे बात करते थे कि साहब जरा इसके बारे में मुझे बताइए, ठीक है ना। और ऐसे ही जो है वहाँ पर जो ऑपरेशंस वगैरह किए गए थे तो हमने, चूँकि फोर्स जो है वो वीआईपी ड्यूटी में, और वीआईपी ड्यूटी क्या कहा जाए, स्टडी ड्यूटी में थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूटी में थी, रोड ओपनिंग ड्यूटी में थी, तो रियल ऑपरेशंस के लिए फोर्स नहीं बचती थी। तो हमने इसका एकदम उल्टा किया। हमने कहा कि पहले उन जगहों का अनुमान लगाइए जहाँ की हमारे इनकाउंटर होने की संभावना है। तो वो आने जाने की जगह पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर जहाँ पे कि उन्होंने एम्बुश किया था, या जहाँ पे जो है ना मिलिटेंट्स जो है रहने वाले थे, और जनरली इंफॉर्मेशन यही मिलती है कि जब जो है ना मिलिटेंट का ग्रुप जो है अपने घर आया है, आ रहा है, जा रहा है, तो उसका बड़ी आसानी से ये अनुमान लग जाता था कि कहाँ पर जो है हमारे इनकाउंटर हो सकते हैं। और उन सब इनकाउंटर की जगह की पहले से ही ऑपरेशनल प्लान ड्रॉ किए गए, और चूंकि जो जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास पर्याप्त फोर्स नहीं रहता था, तो दूसरी जगह से पर्याप्त फोर्स जो है ना इकट्ठा करके और फिर उसका अभ्यास कराया जाता था। तो हमारे पास इसके बाद फिर बल की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं गई। मुझे लगता है कि सभी फोर्सेस को वार टाइम के लिए या हॉट ऑपरेशन के लिए, या जब दंगा हो गया है या तो कॉम्युनल राइट हो गया है, उसके पहले जो है यदि इस तरीके की तैयारी होगी तो दे कैन बी वेरी इफेक्टिव, नंबर 1। नंबर 2, जो भी दंगे होते हैं दंगे कराए जाते हैं, तो हमारे पास जो है यदि पहले से हमको उनके नेटवर्क की आइडिया है तो हम बहुत इफेक्टिवली प्रिवेंटिव अरेस्ट भी कर सकते हैं। रादर मेरा तो ये मानना है कि यदि मेरी स्ट्रेटेजी से चला जाए तो दंगे करना, कानून व्यवस्था पैदा करना संभवतः आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा लोगों की। अभी जो है वो दंगे करवाते हैं, उनके दंगे का नेटवर्क है, वो नेटवर्क स्टडी किया जा सकता है, वो नेटवर्क यूं जो है ना टेक्निकली यूं जो है ना एक्सपोज किया जा सकता है, और एक बार आपको उसके नेटवर्क के बारे में मालूम है, देन नेटवर्क के ऊपर एक टेक्निकल सर्विलेंस हो सकती है। हम उनको जो है इसके पहले वो दंगा कराएं, उनके हाथ पैरों को हम नाकाम कर सकते हैं। इतनी प्रभावी व्यवस्था अपराध मुक्त भारत के टेक्नोलॉजिकल सिस्टम और उसके वॉलंटियर और पब्लिक का जो नेटवर्क का जो क्यूमुलेटिव पावर है, उसके कारण मुझे लगता है कि भविष्य में कानून व्यवस्था स्थिति पैदा करना या राइट कराना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं हो। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मैं मान रही हूँ सर, आपने जो बोला कि भोपाल में जब मैं पोस्टेड था तो वहां पर पहले से एक्चुअली आरएफ में जो होता है हमारे, तो वो फैम एक्साइज बोलते हैं सर उसको, परिचायिता अभियान। तो पहले जाकर के जिस स्टेट्स में जो ज्यूरिसडिक्शंस में आते हैं तो उसकी जो भौगोलिक और राजनीतिक और जो गुंडा तत्व की जानकारी होती है वो हम सब लोगों के पास इकट्ठा होती है। बट होल सीआरपीएफ में ये नामुमकिन है सर, होल सीआरपीएफ नहीं कर पाती है इस चीज को। देखिए, हम लोग बहुत जो है डिफेंसिव के काम करते हैं। हम जैसे पर्चे, अरे भाई पर्चे क्यों, हमारे पास इंटेंसिव इंफॉर्मेशन क्यों नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आपका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी पहले से प्लान कर लें कि यदि आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है तो ये बटालियन यहाँ आएगी, यदि हमको 10 बटालियन चाहिए तो कौन कौन सी बटालियन हमको भेजना पड़ेगी। आपके दंगे वाले जगह और शहर लगभग निश्चित हैं पहले से, तो हमें यदि इतना फोर्स चाहिए तो ये बटालियन डिप्लॉय होंगी, इतना फोर्स चाहिए तो ये बटालियन डिप्लॉय होंगी, और उनको जो है हम इंटेंसिव जो है तैयारी करा सकते हैं उनसे। पुलिस जो है वो ढेर सारी चीज़ों में बिजी है, सीआरपीएफ हो चाहे दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स हो, जब वो डिप्लॉयड है तो उसके पास और कोई काम नहीं इसके अलावा। तो सही मायने में देखा जाए तो वो तैयारी लोकल पुलिस से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, और यदि उन्होंने लोकल पुलिस से ज़्यादा तैयारी कर ली है तो अभी जो अपरिचित फोर्स होने के कारण जो उनका हैंडीकैप है वो हैंडीकैप लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो हमें जो है ना ये करना पड़ेगा। यदि हम ये कर पाते हैं
और जो उसको कर पाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम जो है इन बहुत अच्छे ढंग से जो है ना लोगों को हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो है क्राइम के, क्योंकि जितने भी दंगे होते हैं इसमें कहीं ना कहीं क्रिमिनल एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, और क्रिमिनल एलिमेंट्स के जो है के बारे में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ढेर सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर होने के कारण वी विल बी नोइंग देयर फुल नेटवर्क, वी विल बी नोइंग कि किस रूट का यूज करते हैं। हम उनके बारे में वो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब उनके गुर्गे मूव करेंगे तो हमारे बीच का जो नेटवर्क है वो उनकी लोकेशन को कैप्चर करके आगे वो कहाँ जाने वाले हैं इसका अनुमान लगा सकते हैं। यदि हमको उनकी प्रिवेंटिव अरेस्ट करना है तो हम उनको ऐसी जगह पे अरेस्ट कर सकते हैं जहाँ की उनकी हस्ती मामूली होती है। कई बार हम क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को वहाँ पर जाके हम अरेस्ट करने पहुँच जाते हैं जहाँ के वो लॉर्ड होते हैं, जब और वहाँ पे वो बादशाह जैसी उनकी हैसियत होती है। हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जाना चाहते हैं तो फिर पूरी तैयारी के साथ जाएं। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि बदमाश को, हर बदमाश एक कुत्ता है और कुत्ते को कुत्ते की हैसियत से पकड़ो। और ये हिंदी में कहावत है कि हर जो है कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। तो हमें कुत्ते को कुत्ते की गली में नहीं पकड़ना है। जब आपको ब्रह्म चक्षु मिला हुआ है, when you know everything, then you can decide कि हमें से कहाँ पकड़ना है। और यदि कभी आप कुत्ते को उसकी गली में या उसके घर पर शेर की हैसियत में पकड़ना चाहते हैं तो फिर एक मूर्खतापूर्ण बात होगी यदि हम तैयारी से ना जाएं। तो हम जब शेर को पकड़ने जा रहे हैं तो शेर की तैयारी से जाएं, और हमें उसके पूरे नेटवर्क की जानकारी होना चाहिए, नेटवर्क की मॉनिटरिंग होना चाहिए। और कभी भी जो है राजा और रानी को, राजा को मारा नहीं जाता है, राजा को घेरा जाता है। तो शतरंज की तरह जो है पहले प्यादों को जो है ना चारों तरफ से घेर के अलग कर दीजिए, आपका जो है फिर तो आप कभी भी बादशाह को मात दे सकते हैं। संभवतः हम शतरंज की इन गेम का जो है जितना प्रभावी ढंग से हमें यूज करना चाहिए हम शायद करते नहीं हैं। यदि हम करेंगे तो हमारी स्थिति बिल्कुल भिन्न होगी। मुझे लगता है कि रिस्मिना जी आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। और ये ऑन गोइंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग एज ए गेस्ट आर्टिस्ट जाते हैं सीआरपीएफ वगैरह में। यदि हम उस एरिया को ऑन करें, उसके बारे में रेशल दें, उसके बारे में एक्वाटेंस डेवलप करें और हम थोड़ा सा परहेज करें, परिचय जैसे जो है सतही शब्दों का उपयोग ना करके हमें एग्रेसिव बात करना चाहिए। और हमारे शब्दों से भी वो होना चाहिए कि वी आर ऑन सीरियस बिजनेस। हम वहाँ सिर्फ फैमिलाइजेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जो है वहाँ पे ऑपरेशन तैयारी के लिए जा रहे हैं। और हमें वहाँ के बदमाशों के बारे में, हमें वहाँ पे गुंडागर्दी करने वालों के बारे में, वहाँ के कॉमनल एलिमेंट्स के बारे में, उनके फोटो से लेके उनकी हर चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। हम उनके घर को पहचाने, हम उनके जो है ना चेहरे को पहचाने और उनके शागिर्दों को पहचाने। यदि हम ये सब अच्छे ढंग से करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जो आपने प्रॉब्लम बताई है वो प्रॉब्लम रह जाएगी। दैट विल बिकम एसेट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फायदा सीआरपीएफ और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है, उनके पास समय बहुत ज़्यादा है। पुलिस 2500 चीज़ों में फंसी हुई है, वो कॉन्सेंट्रेटेड ना तो आपको ब्रीफ कर पाती है, ना आपको गाइड कर पाती है, ना आपको टिप दे पाती है। तो जो आप एड टू जो है ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, ना तो वो आपसे ठीक ढंग से मदद ले पाती है और ना आप उसको ठीक ढंग से मदद दे पाते हैं। यदि ये होमवर्क दोनों तरफ से ठीक हो गया तो हम ज़्यादा प्रभावी मदद जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कर पाएंगे। आई होप कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और आगे आप आगे के वो देखेंगे कार्यक्रम तो आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें स्वतः ज्ञात हो जाएंगी। पीयूष जी, आप अगले गेस्ट को लें और बात आगे बढ़ाएं। सॉरी सर, माइक वाज म्यूटेड। माय माइक वाज म्यूटेड। तस्लीमा मैम, अगर आपके पास और भी कोई सवाल है क्राइम फ्री भारत से रिलेटेड तो आप मैथिली सर से पूछें। हेलो। हाँ, उनके पास कोई प्रश्न नहीं है। आप नेक्स्ट मूव करिए। मेरा हो गया। थैंक यू।
Thank you, ma'am, for coming to on our show. Next, sir, we will go to judge of this country, Mr. Lalit Sastry, sir. ललित शास्त्री सर, हमें पता है कि हाँ, आपके पास अनुभवों की कमी नहीं है। आप एक भी अनुभव बताएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट होगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक अपने लाइफ के हाँ, वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो कि हमारे इस क्राइम फ्री भारत की में हेल्प करें। हम उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ रिफॉर्म करें। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले माइक टेस्ट कर लूं मैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? पीयूष जी, पीयूष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। ओके, ऑडिबल सर। ओके, सबको फिर से मेरी ओर से नमस्कार। Yes, sir. और ये एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आप लोगों के बीच में आकर के और अपने कुछ एक्सपीरियंस, अपने जो मेरा जो ऑब्जर्वेशंस हैं लॉ एंड ऑर्डर, इन्फोर्समेंट, यूनिफॉर्म फोर्स, इन सब को लेके मैं कुछ एक नटशेल में आपसे शेयर करना चाहूँगा बातें। जब पुलिस की बात आती है, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और एक जगह मैंने पढ़ा था, एक प्रासंगिक लिटरेचर है और जो आधिकारिक है, उसमें ये था कि जब शेरशाह सूरी का राज था तो ये कहा जाता था कि रात के 12 बज रहे हों, 1 बज रहे हों, कोई भी महिला अपने घर से दूसरे घर सोने के जेवरों से लद के जा सकती है। उसे कोई खतरा नहीं था कि कोई उसको लूट लेगा या उसके गहने जवाहरात कोई ले लेगा। और ये एक कॉन्फिडेंस था लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पे उस वक्त। अब क्राइम फ्री भारत की बात कर रहे हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर सिनेरियो है उसमें बहुत मूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और एक संशय रहता है पब्लिक को कि हम घर में चोर ना आ जाए, हम सड़क पे जाएं तो लूट लिए ना जाएं, हम एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो कोई पीछे से चाकू ना लगा दे, एंड सो ऑन। एक हर किस्म का एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से लोग जूझ रहे होते हैं। अब इसके जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर है, स्टेट सब्जेक्ट है और पुलिसिंग जो व्यवस्था है उसका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल हो सिचुएशन का। कहते हैं जब क्राइम बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो इसको हमें इसके जेनेसिस पे समस्या के मुख्य प्रमुख कारण क्या हैं और ये कितने किस्म के लॉ एंड ऑर्डर समस्याएं होती हैं। एक तो जब दुनिया एक हो रही है, जब सब कुछ साइबर पे चला गया है, हमारा जो ट्रांसैक्शंस हैं वो डिजिटल होने लगे हैं, तो साइबर क्राइम से लेकर के हाईवे क्राइम, रोड क्राइम, अलग के पॉलिटिकल क्राइम, पॉलिटिकल मर्डर से लेकर सब कुछ हो रहा है देश में। बातें हो रही है, न्यूज़ खोलिए चैनल तो लोग कहते हैं वेस्ट बंगाल में तो बुरी हालत है। पुलिस की बात उठी, मैथिली शरण जी ने भी बताया कि पुलिस के पास बहुत काम रहते हैं, ज़्यादा वो शेयर नहीं कर सकती इंफॉर्मेशन। अब मैं अपनी बात को इस बैकग्राउंड के बाद बेसिक्स को कुछ शुरू करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर एक तो है जनरलाइज्ड सिक्योरिटी यानी पब्लिक की सिक्योरिटी, और एक हो जाती है वीआईपी सिक्योरिटी। जनता सुनती आती है कि फला लेवल के नेताओं को जेड कैटेगरी मिली हुई है, वाई कैटेगरी मिली है सिक्योरिटी, और पूरे ताम झाम के साथ सिक्योरिटी चलती है और उनका प्रोटेक्शन के लिए महकमा लगा रहता है। वीआईपी मूवमेंट होता है तो वो जितने थाने एरिया आते हैं बीच में सबकी ड्यूटी लग जाती है, और कोई प्रमुख प्रोटोकॉल से वीआईपी हों तो सुबह से शाम तक और 2 दिन पहले से ड्यूटी लग जाती है। तो बहुत डिप्लॉयमेंट जो है जो जनरलाइज सिक्योरिटी से ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और जहाँ कोई कार्यक्रम हो रहे होते हैं नेताओं के और उनके जो सिक्योरिटी थ्रेट्स और परसेप्शन है उसको लेकर के, तो पुलिस का डाइवर्जन बहुत हो रहा है। तो इसमें सफ़र होती है जनरलाइज्ड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा। अब जब हम जनरलाइज्ड और वीआईपी सिक्योरिटी की बात करते हैं और हम उस यूनिफॉर्म फोर्स की बात करते हैं जिसका ये काम है सिक्योरिटी इंश्योर करना, हम समाज उनको क्या दे रहा है रिटर्न में। हम लोग ये बहुत कहते हैं कि बात करते हैं भ्रष्टाचार की, बात करते हैं कि एफआईआर दर्ज करनी है तो पैसा दो, इन्वेस्टिगेशन है तो पैसा दो। समाज में जो बातें होती हैं क्या यथार्थ है ये बात अलग है। बहुत कुछ तो परसेप्शन बन जाता है। तो
कई बार तो अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स जो बहुत बढ़िया काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से, एक तरह से थानों का इंस्पेक्शन, अब थानों का जब इंस्पेक्शन है तो उस इंस्पेक्शन में क्या क्या जरूरी है, लोग एक तो अपनी केस डायरीज बनाना, हम लोगों ने देखा है कि पिछले करीब 30-40 साल में बीट सिस्टम जो होता है मोहल्ले का, वो एक तरह से कैजुअलिटी हो गया है, खत्म हो गया है बीट सिस्टम। जब बीट सिस्टम होता था, अगर आप गांव में चले जाइए तो चौकीदारी व्यवस्था होती थी, वो चौकीदार जाकर के थाने में रिपोर्ट करता था, अगर कोई भी मुसाफिर किसी गांव में आके रुकता था तो थाने में खबर हो जाती थी कि यहाँ एक मुसाफिर आया है और रुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्लीपर सेल्स टेररिस्ट के फैल रहे हैं, जिहादी ग्रुप्स फैल रहे हैं, जो टेरर की भाषा बोलते हैं और जिनकी डिसरप्शन ही जिनका ऑब्जेक्टिव है। हम लोग बात करते हैं अर्बन नक्सलाइट्स की और नक्सलाइट्स, मैं नक्सलाइट्स की भी बात करना चाहूँगा। तो हो क्या रहा है, हमारा बीट सिस्टम जब कैजुअलिटी बनता है तो इंफॉर्मेशन का एक तरह से जो चैनल्स हैं वो सूखने लगते हैं, और जब वो ऐसा होता है तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। मुझे याद आ रहा है एक वाकया, एक बॉम्बे टेरर अटैक से जुड़ा हुआ, अबू सलेम। अब अबू सलेम आके भोपाल में रुकता है, भोपाल में रुक करके वो यहीं से पासपोर्ट बनवाया, उसने पासपोर्ट बनवा के वो गायब हो गया। तो मुझे याद आ रहा है एक बार ये खबर आई कि अबू सलेम का भोपाल में पासपोर्ट बना और वो पुर्तगाल चला गया। उसके 1-2 दिन बाद ही मुझे मौका मिला ग्राम संपर्क अभियान में, तब मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, और उनके साथ हेलीकॉप्टर में जाने का मौका। तो इस खबर को मैंने लेके पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ, टेररिस्ट बॉम्बे इंडिया का मोस्ट वांटेड, जिसको अब हम एक्स्ट्राडाइट करने की बात करते हैं, भोपाल में रहता है, यहीं पासपोर्ट बनता है, और उसमें एक रूलिंग पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता का भी नाम उसमें आ रहा था, जिसने एबेट किया था, हेल्प किया था ये बनवाने में। तो मैंने कहा ये आपको तो यहीं पकड़ लेना चाहिए था उसको। तो वो जैसे ले मैन और एक द मैन बिहाइंड एवरीथिंग, कहते हैं ये देखिए ये सब सोची समझी बात होती है, ये तो बनवाया गया है ताकि वो जाए, अब ये अपना प्रूफ छोड़ के जाएगा और फिर उसको हम एक्स्ट्राडाइट कराएंगे, फिर उसको ऐसी सजा मिलेगी कि आप देखते जाइएगा। तो अब इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है, ऑपरेटिव्स क्या कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के क्या हो रहा है, तो वो एक पूरी व्यवस्था चल रही होती है जो लेमैन उससे संबंधित नहीं रहता। पर इसके अलावा जो जनरलाइज सिक्योरिटी है वो, उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जनता के राइट्स क्या हैं वो बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है कि जनता को ये पता चल जाए कि पुलिस का जो महकमा है थाने लेवल पे स्पेशली और डिस्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट लेवल पे स्पेशली, वो जनता के लिए है, वो जनता पे दादागिरी करने के लिए नहीं है। वो अगर दादागिरी की संभावना है तो जो लॉ को तोड़े उसके लिए है, और वो एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि जो पुलिस है ये जनता की दोस्त है, फ्रेंड है, और जनता की मदद के लिए है। ये बहुत जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन, एटीट्यूडनल चेंज इन द पुलिस फोर्स। मैथिली सर, यहाँ पे शास्त्री सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है, दैट जनता के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्राइम फ्री भारत के माध्यम से हम, हमारा क्या स्टेप है ताकि जनता के बीच में हम जा सकें और उनके बीच में अवेयरनेस फैला सकें? ये हमारे लिए बहुत चैलेंज है सर। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, और उसके लिए मैं अपने मित्र जो है श्री शास्त्री जी का बहुत से मैं आभारी हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम हमेशा बीट सिस्टम की बात करते हैं, हम हमेशा ग्राम चौकीदार की बात करते हैं। ये व्यवस्था उस समय की गई थी जब टेक्नोलॉजी जो है आपके पास नहीं थी, और उस समय हमने जो कानून बनाया उस कानून में देखिए कितनी दूर की सोच थी। यदि आप जो है सेक्शन 39 CRPC पढ़ें तो उसमें मैं कई बार बहुत ताज्जुब करता हूँ कि अब मैं जो है इतना समय से मैं डीजी हूँ, 6-7 साल से तो डीजी ही हूँ, तो आज तक हम लोगों ने इस सेक्शन का पब्लिक को अच्छे ढंग से जो है ना ज्ञान क्यों नहीं कराया, उसको सब चीज़ के बारे में क्यों नहीं बताया।
सेक्शन 39 जो सीआरपीसी का है वो ये बताता है कि भारत की पूरी जनता पुलिस है। हमने जो है ना यूनिफॉर्म पहनी हुई है और पब्लिक ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। हमको अपने काम के लिए वेतन मिलता है, उनको वेतन नहीं मिलता है। बाकी देखा जाए तो सेक्शन 39 के तहत जनता पे लगभग वो सब जिम्मेवारी डाली गई है जो पुलिस का भी अपना कर्तव्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो उसको यदि मालूम पड़े कि कोई अपराध करने की तैयारी कर रहा है तो उसकी खबर दे वो, तब अपराध जो है यदि मान लो घटित हो जाए तो यदि उसके आंखों के सामने हो रहा है तो उसको वो गिरफ्तार करे। यदि उसको अपराध की जानकारी मालूम पड़ती है तो वो अपराध की सूचना दे, वो पुलिस की मदद करे। और पुलिस तो छोड़ो, पुलिस का कोई रिप्रेजेंटेटिव यदि जाता है और वो उसको भी मदद की जरूरत है तो जनता को कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव और पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव की भी मदद करने की जो कानूनी जिम्मेवारी सेक्शन 39 के तहत दी गई है। और सेक्शन 39 एकदम अजीब तरीके का और जो है ना भिन्न सेक्शन है जिसमें बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस दैट इज ऑन पब्लिक। तो यदि हम जो है ना किसी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि इसने अपने इस कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है तो उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और उसने वो इनोसेंट है ये उसे सिद्ध करना है, वो गिल्टी है ये पुलिस को सिद्ध नहीं करना है, ऐसा कानून में प्रावधान है। एंड इस पावरफुल कानून के प्रावधान के बावजूद भी हम जो है जनता को ये महसूस नहीं करा पा रहे हैं कि हम सब 130 करोड़ लोग पुलिस वाले हैं। यदि हम एक छोटी सी बात जनता को एहसास करा दें तो ये जो जनता और कम्युनिटी और जो है पुलिस कम्युनिटी रिलेशनशिप ये सब जो है ना अपने आप खुद ब खुद जो है ना विलोपित हो जाएगा। जब हम और आप में कोई फर्क ही नहीं है तो किस विश्वास की बात कर रहे हैं? हमारा और आप में तो विश्वास होना ही चाहिए। अब वो विश्वास तो जो है, अब दूसरी बात, पहले जो है आपको जाके किसी को मालूम होगा तब आप उसको खबर करेंगे। चौकीदार जो है महीने में एक बार जाएगा और खबर देगा। अब जो जैसे जो आपका वॉलंटरी ऐप है ये इतना पावरफुल ऐप है, ये आपकी 3 तरीके की जो है उसका वो ध्यान रखता है। यू कुड बी वॉलंटियर, यदि आप वॉलंटियर हैं तो आपको ट्रेन किया जाएगा, आपको जो है स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पावर से प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप यदि ऑब्जर्वर हैं तो ऑब्जर्वर और वॉलंटियर में फ़र्क कितना, केवल इतना है कि वॉलंटियर फिजिकली भी इन्वॉल्व होगा, ऑब्जर्वर जो है फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसकी जो 5 जो इंद्रियां हैं चक्षु जिसको, उसके माध्यम से वो भी जो भी जानकारी उसके पास है उसको वो उसी ऐप के माध्यम से परोसेगा। ये जो ऑब्जर्वर। एंड तीसरी जो कैपेसिटी है जो ना वॉलंटियर है ना ऑब्जर्वर है वो है स्टेक होल्डर। तो कम से कम हम सब में से हम लोग अपनी खुद की सुरक्षा के प्रति तो स्टेक होल्डर हैं ही। ये बात यदि हम समझें तो बहुत सारा जो है इशू खत्म हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अब जो है बीट और ये सब कार्रवाई तो चलती रहे, कोई बुराई नहीं है, बिकॉज वेल एस्टैब्लिश सिस्टम है। जितना पुलिस को अपने क्षेत्र की जानकारी होगी, जितना उससे जुड़ाव होगा, उतना बेटर है। यदि आपको याद होगा शास्त्री जी, जब मैं एसपी भोपाल था तो यहाँ पे 82 जो है कम्युनिटी जो है बीट हेडक्वार्टर पब्लिक में बना के दिए थे और हमने थाने से बीट को उठा के शहर के महत्वपूर्ण उसी जहाँ पे उस थाने का क्षेत्र था उस थाने के सबसे महत्वपूर्ण जगह पे जो है वो बीट हेडक्वार्टर खोल दिए गए थे, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा क्राइम होता था, जहाँ पे कि लड़ाई झगड़े होते थे, जहाँ पे कि दंगा फसाद होता था, जहाँ पे कि अपराध होता था। और जब हम जो है उन बीट हेडक्वार्टर को इंटीरियर जहाँ मुख्य जगह पे ले गए तो उन जगह पे अपराध होना बंद हो गया। मैं आपको एक चीज़ और भी याद दिलाना चाहूँगा, उस समय जो पुलिस थी वो हर व्यक्ति को, उसको पूरा सिपाहियों को लेन तक जो है ना बटी हुई थी और उनको ये जिम्मेवारी थी कि यदि जो है कोई गमी हो गई है तो वो थाना प्रभारी से और चौकी अपने बीट प्रभारी से इजाजत लेके उस गमी में भी साथ में जाएगा। उस तरीके का जुड़ाव जो है वो हम भोपाल में हासिल कर सके थे। और जब आपका उस तरीके का जुड़ाव होता है तो आपको एक
बहुत बड़ी फेथ जो होती है। आपको याद होगा उस समय एक पेटियों वाला भी अपन ने अभियान किया था, और उस पेटियों से, जिसको अपन ने जागरूक नागरिक पेटी का नाम दिया था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी परमिट नहीं करती थी, तो उसको फिजिकल फॉर्मेट में किया गया था। और उसमें जो जानकारी आई थी उसमें से आई थिंक 85% से भी ज़्यादा जानकारी पे हम लोगों ने लीगल एक्शन ले पाए थे। किसी भी सिस्टम से जानकारी मिलने पे इतनी ज़्यादा जो है ना कानूनी कार्रवाई हो, ये संभव नहीं होता है। तो ये उस समय का जो हालात थे। और आपको एक चीज़ और भी याद होगी कि एक विदाउट पब्लिक से इंटरफेस हुए ट्रैफिक चालान का भी सिस्टम रखा गया था। तो पुलिस वाले जो है किसी का चालान नहीं करते थे, वो सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन को जो है नोट करते थे। तो जितने भी वायलेशन थे उनको ABCD कैटेगरी में बांट दिया गया था। उसको मालूम है कि वो इस जगह पे है, टाइमिंग उसने कहा 9 to 9:15। अब उसका एक ही काम रहता था, गाड़ी का नंबर और वायलेशन की कैटेगरी, और वो स्लिप कट के जो है ना बगल में कंट्रोल रूम में चली जाती थी, और वहाँ पे RTO के डाटाबेस से चालान बनता था। और उस चालान में का लगभग 100% जो है वो उसमें लोगों ने चालान जमा किया। मतलब उस सिस्टम के ऊपर इतनी फेथ जो है ना लोगों की पैदा थी। जहां हमने एक और कहा था कि हम नेगेटिव इंटरफेस पब्लिक से नहीं रखेंगे और हम फेस टू फेस चालान नहीं करेंगे, वहीं पर हमने इस ई चालान की व्यवस्था जो है ना, जिसे सेमी ई चालान कहा जाए, इस सेमी ई चालान के माध्यम से हमने उस समय रिकॉर्ड चालान किए। तो नाउ द टेक्नोलॉजी इज सपोर्टिंग मच हायर थिंग्स। तो यदि आपका वॉलंटियर और आपके माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, और वो भी सीधे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो पुलिस वाले को भी नहीं मालूम है कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो अभी जो आपका जो बीट सिस्टम है वो पुलिस वाले के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देने की बात करते हैं। और जब जो है यदि पुलिस की भी कहीं पे सनिष्ठा जो है ना संदिग्ध हो जाती है, यदि वो कहीं खुद अपराधी से मिला हुआ है, तो पब्लिक एट रिसीविंग एंड होती है। उससे सबसे ज़्यादा तो भाई ये लगता है कि यदि हम कोई बात कहेंगे, ऐसा ना हो कि बदमाश को, गुंडे को ये चीज़ मालूम पड़ जाए और हमारी सुरक्षा जो है खतरे में पड़ जाए। नाउ द टेक्नोलॉजी इज परमिटिंग समथिंग डिफरेंट। टेक्नोलॉजी परमिट कर रही है कि रियल टाइम बेसिस पे आपके वॉलंटियर ऑब्जर्वेशंस जो है, ऑब्जर्वर्स और स्टेक होल्डर, दे कैन report their FIR, they can give their observation, they can give their feedback, and they can be tasked, and the task can be extracted from them, and a revenue stream will flow to them. So एक एकदम भिन्न तरीके की व्यवस्था होगी, और एक साथ आपको 130 करोड़ आंखें और उनका ज्ञान मिल जाएगा। फिर ढेर सारी टेक्नोलॉजी, जिसमें कि CCTV, IoT डिवाइसेस, इनका इतना बड़ा नेटवर्क फैलने वाला है कि ऐसे पॉइंट्स ही नहीं बचेंगे जहां पर कि सिस्टम को फीडबैक ना मिल रहा हो। क्यों? क्योंकि इन सबको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी भारी होने वाली है कि उनका 3 महीने से 6 महीने के अंदर जो जितना वो इन्वेस्ट करेंगे, उसके खर्च करेंगे उस फैसिलिटी को खड़ा करने में, वो 6 महीने से भी कम समय में वो उनकी पूरी कॉस्ट रिकूप हो जाएगी। यदि इतना हैवी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, तो लोग लाइन लगा के जो है वो नोट लगाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जो है ना उनकी कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी, और फिर वो एक उनका आय का वो भी बन जाएगा, और लोग समृद्ध हो, सबके पास आय का जरिया बने, यही तो हम चाहते हैं। तो शास्त्री जी, आप मुझे बताएं कि हमने आपके पॉइंट्स को कुछ छू लिया है, या कुछ पॉइंट पे तो उसको मैं ऐड करना चाहूंगा, उसी को मैं ऐड करना चाहूंगा, यही कि मैंने जो कहा था कि रिफॉर्म्स जो हैं वो मूल चूल रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो वो जो मेरा था रेफरेंस पॉइंट था कि जैसे गांव में चौकीदार या बीट सिस्टम इज अ रेफरेंस पॉइंट, वहां से हम कहाँ आज आ गए हैं। और आप जो कर रहे हैं ना मिशन मोड, ये एक सुपर इम्पोज करने की जरूरत आ गई है टेक्नोलॉजी के साथ एक सिस्टम को, कि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट के लिए आंख और कान वो अब डिजिटाइज, ऑनलाइन और हमारे जितना भी टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हो। पर इसकी स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए, इसमें हर्डल्स नहीं आनी चाहिए। पॉलिसी मेकर्स के जहाँ तक सवाल है, डिसीजन का सवाल है, बजटिंग का सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक फ्लो ऑफ फंड्स, दिस शुड बी ऑन अ फास्ट ट्रैक।
ये मैसेज मैं इसको, इस मुद्दे को जहाँ तक ये है कि पुलिस की आंख और कान जनता बने और टेक्नोलॉजी बने, इस दिशा में जब आप जाना है तो स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। ये इसको, इस विषय आपने को मैं बिल्कुल ठीक कहा है। और मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पुलिस जो है ना, इसमें बहुत खर्चे की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में इतना हार्डवेयर और इतना सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है कि हम उस सिस्टम को ही पूरी ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं। चाहे वो स्मार्ट सिटी के लिए कमांड पोस्ट बनाई गई हो, कमांड सिस्टम बनाए गए हों, चाहे जो है पुलिस के जो है ना साइबर कमांड सेंटर बने हुए हों, चाहे जो है ना एनसीआरबी के और एससीआरबी के जो ना सिस्टम्स बने हों, चाहे नेट ग्रिड के सिस्टम बने हों, इन सब सिस्टम को यदि मिला लिया जाए तो इनका यूज भी जो है ना हम पूरी तरह एक से प्रश्न नहीं उठ कर रहा है पाएंगे, अपने तो बीच में। हमें हाँ, कॉस्ट अपने नहीं लगने वाली है, नंबर 1। जी, नंबर 2, हम जहां पर भी ये जो भी काम करना चाहते हैं वो हम सरकार के पैसे से करना ही नहीं चाहते। नंबर 1, यदि हम सरकार के पैसे से करेंगे तो सरकार के पास पैसा है कि नहीं है, बजट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इतने सारे कोरोना में और बाकी जगह पैसे खर्च हो गए हैं, तो सरकार के साथ प्रॉब्लम हो सकती है कि बजट है कि नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है PPP मॉडल के तहत हो और उन सबको रेवेन्यू स्ट्रीम मिले, तो उनको उससे आय का जरिया भी मिलेगा। और चूंकि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, चूंकि उसमें रेवेन्यू स्ट्रीम डाली गई है, रेवेन्यू स्ट्रीम ऑफ सप्लाइंग एविडेंस, रेवेन्यू स्ट्रीम ऑफ सप्लाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम, रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर जो है ना वायलेशन, और उसका जो है ना एक पूरी टेक्नोलॉजी डिजाइन कर दी गई है जिससे कि जो उसकी ऑथेंटिसिटी है टू बी एक्सेप्टेड इन कोर्ट ऑफ लॉ, उसका बहुत ध्यान रखा गया है। तो जैसे ही वो चीज कैप्चर करती है, इसलिए इसमें अपलोडिंग का सिस्टम नहीं है, इसमें कैप्चरिंग का सिस्टम है। आप अपने वॉलंटियर ऐप से जैसे ही किसी चीज एविडेंस को कैप्चर करेंगे, उसी डेट एंड टाइम एंड लोकेशन के साथ जो है ना उसको वो लॉक कर दिया जाएगा विद हैश वैल्यू। एंड इवन जब वो डिजिटली मूव कर रहा है तो हैश वैल्यू टू हैश वैल्यू मैचिंग होगी, जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो वी विल यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और जब हम कोर्ट में पेश करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके साथ 3 जो है सर्टिफिकेट भी जनरेट करके अटैच करेगा हर एविडेंस के साथ। सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी अंडर सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट, एंड सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। तो चेन ऑफ कस्टडी 2 तरीके की होगी। जब डिजिटल मूवमेंट होगा तो डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी होगी, और जब जो है फिजिकल मूवमेंट होगा तो फिजिकल चेन ऑफ कस्टडी होगी। तो हमारा जितना भी एविडेंस है दैट विल जो है विल एंजॉय हायर डिग्री ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये तो आपकी बात मैं पूरी तरह समझ गया, जहां तक वॉलंटियर्स और कैचिंग ऑफ एविडेंस की बात है। अब दूसरा ये है, कहीं पे जो है ना साउंड आ रही है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली म्यूट योर माइक्रोफोन, तो टोटल इम्पैक्ट इंप्रूव करेगा। जी जी शास्त्री जी, आप अपनी बात को रखिए। इसी में एक कोरोलरी एक जोड़ना चाह रहा हूँ एक सवाल की। एक तो हो गया वॉलंटियर्स के द्वारा एविडेंस को कैच करना और उसकी लीगैलिटी और वैलिडिटी जो आपने समझाया, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एक अर्बन, जैसे अर्बन सेटिंग या रूरल सेटिंग, कवरेज ऑफ एन एरिया बाय सीसीटीवी। तो अपने बीच में विशाल जी बैठे हुए हैं दिल्ली से, और शायद इनको ज़्यादा पता होगा। दिल्ली में ऐसा मैंने खबर पढ़ी कि चप्पा चप्पा सीसीटीवी से कवर्ड है। अब उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कैमरा लगाना है तो उसके लिए पोल लगाना है, तो पोल लगाने की जगह नहीं है, जरा पतली गलियां हैं सकरी। तो ये बात हो गई कि जो सिटीजन्स हैं वो वॉलंटियर करें और वो उनके घर से कैमरा लगे, उसका यूनिट सारा कैच करने का उनके घर पे रहे, और वही उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, और उसकी जो बिजली का खर्चा आता है वो उनके बिल में से उतना डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक मोहल्ले में जितनी भी गलियां हैं, सड़कें हैं, सब सीसीटीवी से राउंड द क्लॉक कवर्ड है, दिन में और रात में 24 घंटे। तो इस तरह का क्या मध्य प्रदेश में कुछ हो रहा है प्रयत्न? अगर एक स्टेट की एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है तो उसको देखिए, इसका जब तक पूरा मॉडल नहीं आएगा तब तक काम नहीं बनेगा। जैसे इसमें बेसिकली इसको कौन करे और कैसा करे, दैट इज द प्रॉब्लम। तो यही कारण है कि इसके लिए फिर
हमने एक किताब लिखी है अपराध मुक्त भारत, क्राइम फ्री भारत, और एक कानून भी बनाया है, और उस कानून का नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। और ये जो मैं आपको इतनी लंबी जो है ना फ्रेज बोल रहा हूँ, इट इज एग्जैक्टली रिटन इन लिस्ट 1 एंट्री 65C। तो इट विल बी एज पर द डिक्टम गिवन बाय द एंट्री 65C। और ये जो है नेशनल अथॉरिटी है वो उसके अम्ब्रेला में ये सब चीजें होंगी। यदि हम इसको शासकीय तरह से करेंगे तो टेंडर से लेके प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा। तो हमको सिर्फ ये डिफाइन करने की जरूरत है कि स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे। यदि हम जो है, यदि आप हमारी चूजिंग भी जगह पे लगा रहे हैं तो हम उसमें आपको कुछ सब्सिडी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हम आपको रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहे हैं, तो आपकी 3 रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है। तो चाहे वॉलंटियर कैप्चर करे या डिवाइस कैप्चर करे, यदि वॉलंटियर कैप्चर करेगा तो वॉलंटियर के अकाउंट में पैसा जाएगा, यदि डिवाइस कैप्चर कर रहा है तो डिवाइस के ऑनर के खाते में पैसा जाएगा। और सभी जो डिवाइसेस जो हैं जो लगे हुए हैं उनको 2 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1, आपने जैसे मान लो CCTV लगाया है अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए, तो उसके कैमरों को 2 पार्ट में बांटा है, इनवर्ड लुकिंग एंड आउटवर्ड लुकिंग। तो जो कैमरे आपके अंदर की तरफ देख रहे हैं, दोज कैमरा विल नॉट बी टॉकिंग टू अस, दे विल रिमेन इन योर प्राइवेसी डोमेन। ओनली जो कैमरा बाहर की तरफ देख रहे हैं, दोज आर कंट्रीब्यूटिंग टू द जनरल सिक्योरिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस, जो कि ऑलरेडी डेवलप कर ली गई है। माई सिस्टम वुड बी इन पोजिशन टू टॉक टू देम डायरेक्टली, और उसको जो है वो उसी समय डेट एंड टाइम और लोकेशन के साथ जो है उसको लॉक भी करेगा, क्योंकि उसमें फेस रिकॉग्निशन से लेके ढेर सारे रिकॉग्निशंस हैं, करीबन 6 या 7 रिकॉग्निशन है। फेस रिकॉग्निशन, एक्सप्रेशन रिकॉग्निशन, गेट रिकॉग्निशन, फैब्रिक रिकॉग्निशन, देन आपका व्हीकल रिकॉग्निशन, एसोसिएट रिकॉग्निशन, बॉडी मास जो है ना इंडेक्स रिकॉग्निशन। तो इतने सारे रिकॉग्निशंस को कैप्चर कर रहा है, और वो जो क्रिमिनल्स या एसोसिएट्स उनके हैं उनके साथ डाटाबेस में वो अटैच हो रहा है। तो ये नोट्स जो है they will be in position to indicate, they can be even tasked कि hey remain alert, this target is going to जो है ना come within your purview। तो जब हम एडवांस टास्किंग करेंगे तो उस तरीके से टास्क हो जाएगा वो, और सिस्टम ने खुद अपने लेवल पर डिटेक्ट किया तो दे विल इंटीमेट कि अभी अभी ये बदमाश जो है ना हमारे सामने से निकला है, उसके साथ ये एसोसिएट है, ही इज इन दिस व्हीकल। देन बैकएंड टेक्नोलॉजी विल डिसाइड कि ये इसके कौन कौन से रूट्स जा सकते हैं, और जब वो निकल रहा है उसकी भाव भंगिमा से और बाकी चीज़ों से हम ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि व्हाट इज हिज इंटेंशन, वेदर ही इज गोइंग इन ए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और ही इज गोइंग विद द इंटेंशन टू कमिट क्राइम। शास्त्री जी, आपको थोड़ा सा सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जब कोई क्राइम कमिट करने जाता है ही नीड डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रिपरेशन, एंड दैट प्रिपरेशन कुड बी कैप्चर्ड। सो वी कैन से डेफिनेटली कि अभी ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं जा रहा है, ही इज गोइंग टू कमिट क्राइम। एंड देन जो है वी नो द हॉट स्पॉट्स एंड वी नो कि हाउ ही इज मूविंग। तो हम उसको प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट के द्वारा, या तो जहां वो हॉट स्पॉट पे वो क्राइम करने जा रहा है, क्राइम करने के पहले उसको पकड़ पाएंगे, और यदि हम डिसाइड करेंगे तो जैसे अभी हमने कहा था कि हर क्रिमिनल जो है ना अपने गली में कुत्ता वो होता है, शेर होता है, तो हम उसे कुत्ते की हैसियत से पकड़ेंगे, तो टेक्नोलॉजी विल डिसाइड कि हमें उसे कहाँ इंटरसेप्ट करना है। You mean to say artificial intelligence is? You mean to say artificial intelligence will be? Just a minute. अभी हम बिल्कुल असहाय की हैसियत में रहते हैं। अभी जो हमारी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो भी इंफॉर्मेशन है दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड प्रोबब्ली दैट इंफॉर्मेशन इज आल्सो मेंट फॉर सर्विंग सम सेंटर्स, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिवली फॉर द सिस्टम। यहाँ पर ये सब इंफॉर्मेशन आगे चल के पुलिस के पास रहने ही वाली नहीं है, बिकॉज वी आर सेइंग वी आर हियर फॉर द प्राइवेसी ऑफ सिटीजन, सो वी आर गारंटिंग प्राइवेसी टू द क्रिमिनल्स एंड प्राइवेसी टू द सिटीजन। तो ये जो ढेर सारी चीजें हम कैप्चर कर रहे हैं, दे विल गो इन द नेशनल अथॉरिटीज के उसमें जाएगी, और पुलिस को रॉ डाटा नहीं मिलेगा, पुलिस को प्रोसेस्ड लीड मिलेगी, और जहां संभव होगा
उस लीड को हम इन्वेस्टिगेशन ऐप में इंटीग्रेट कर देंगे, तो उसकी कैप्चरिंग भी हम कर पाएंगे, और जो भी वो काम कर रहा है उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी रियल टाइम बेसिस पे होगा। तो उसको अपने ऐप में उसका परफॉर्मेंस कहाँ चल रहा है वो देख पाएगा, और यदि उसका परफॉर्मेंस नीचे स्लिप करेगा तो एक मैसेज भी उसको मिलेगा, हे योर परफॉर्मेंस इज स्लिपिंग डाउन। या जैसे आप गेम खेलते हैं और अच्छे में आप जीत जाते हैं, हे गुड लक और कप और व्हाटएवर, जो है ना एक मोटिवेशनल टाइप का एक कोई ना कुछ स्लोगन है, एसएमएस आ जाता है, दैट विल बी डूएबल। हे यू हैव डन गुड जॉब, देयर इज अ जंप इन योर परफॉर्मेंस, यू हैव नाउ योर परफॉर्मेंस हैज गॉन अप बाय 0.2, समथिंग लाइक दैट। और फिर उस परफॉर्मेंस को जब आप एसीआर में कन्वर्ट कर पाएंगे, जब आप उस परफॉर्मेंस को उसके प्रमोशन से जोड़ पाएंगे, जब उस परफॉर्मेंस को आप उसके प्लेसमेंट से जोड़ पाएंगे, तो वो जो है पूरी मशीनरी को डिफरेंट ढंग से एनर्जाइज कर देगा। अभी हमारी 90% एनर्जी रियल कोर पुलिसिंग में जा ही नहीं रही है। यदि हम थोड़ा सा कंसेशन भी दे दें तो 70% से ज्यादा एनर्जी हमारी डिसिपेट हो रही है पेरिफेरल मैटर में। इस पे एक सवाल उठता है, क्या मैं जी बीच में? देखिए, आपने कहा भाई 90% यूनिफॉर्म फोर्स की एनर्जी जो जानी चाहिए वो डिसिपेट हो रही है पेरिफेरीज में। इसमें कुछ एज ए जर्नलिस्ट ओवर अ लॉन्ग ईयर्स जो मैंने बातें ऑब्जर्व की हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इन नटशेल मैं समझ लिया बुलेट पॉइंट्स में बताता हूँ। एक तो ये है, अभी हाल में एक वायरल हुआ पिक्चर मैंने देखे, 3 स्टार्स ऑन शोल्डर, छाता लेकर के कलेक्टर और एसपी के लिए चले जा रहे हैं पीछे पीछे। पहला सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म फोर्स, ये सबऑर्डिनेशन, आई थिंक इट इज हाई टाइम हम प्रोफेशनल फोर्स बनाएं और सबऑर्डिनेशन को इस कदर जनता के आगे ये पिक्चर ना प्रेजेंट करने दें कि हमने राज एरा के कुछ रेमिनेंट्स को हमने बहुत इनहेरिट करा लिया है और उसको बड़ा हेरिटेज की तरह संभाल के रखा है। दिस शुड बी ड्रॉप समवेयर, एक। और दूसरा आता है, जब पीएसओज होते हैं, पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं, और जो सिक्योरिटी दी जाती है, दे स्टार्ट वर्किंग एज मेनियल, आई हैव नो नेम्स, मतलब मैं रुक गया, मैं बोलूं क्या? तो उनको इस तरह से यूज किया जा सकता है फॉर ऑल लूज एंड जॉब्स, फॉर ऑल लूज एंड जॉब्स। और वो भी इतना घर का पार्ट बन जाते हैं क्योंकि उनको नेताजी के साथ रह के बहुत सत्ता भी मिलती है, छूट मिलती है, और यूनिफॉर्म फोर्स की जो डिसिप्लिन है, जो उनकी जो डिमांड्स हैं ड्यूटी को लेकर के, उससे वो बच जाते हैं और बस साथ साथ चलते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा ह्यूमर डालूं इसके ऊपर, तो एक भोपाल का परिदृश्य में एक स्टोरी चलती थी कि बेगम साहब की यहाँ 2 महिलाएं काम करती थी भोपाल की, तो बात कर रही थी कि अपने जुम्मन मियाँ जो है आजकल तो उनकी मौज है। क्या मौज है? नवाब साहब की यहाँ नौकरी करते हैं, तो नवाब साहब जहाँ रहते हैं वहाँ वो रहते हैं, जहाँ नवाब साहब जाते हैं वहाँ वो जाते हैं, जो नवाब साहब खाते हैं वो खाते हैं, जहाँ उठे बैठे सब नवाब साहब की तरह चलते उठते हैं। बोलती भैया वो करते क्या है? करते क्या है? नवाब साहब की पीकदान उठाते हैं। तो ये जो एक कल्चर कंटेंट है इस एक स्टोरी के अंदर, इस जुमले में, इस जोक में, जब हम ये देखते हैं कि छाता लेके चल रहे हैं और ब्रीफकेस लेके चल रहे हैं और पीछे पीछे चल रहे हैं, जिनको हमने 3 स्टार बनाया है, एसएचओ के लेवल का अधिकारी बनाया, इंस्पेक्टर्स हैं, आई थिंक दे आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स। तो हमें एक सेल्फ एस्टीम अपनी यूनिफॉर्म फोर्स में क्रिएट करनी है, उनमें एक रिस्पेक्ट जागृत करनी है, और उनको हमें प्रोफेशनल्स की तरह ट्रीट करना है, और उन्हें हमें मोटिवेट करना है, ट्रेन करना है, और कर्टियस बनाना है। 2-3 चीजें कर्टियस। देखिए शास्त्री जी, मैं आपका बात का जवाब देता हूँ। ये अभी जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि उसे ये नहीं मालूम है कि तोते की जान किधर है। अभी जो है, जैसे वो कहते थे ना कि पुलिस के 7 जो है ना हस्बैंड होते थे, अब तो 7 बल्कि 70-80 हो गए शायद। तो पुलिस को हर कोई डोमिनेट कर रहा है, और जो भी पुलिस वाले को ये भरोसा दिला देता है कि ही मैटर्स, पुलिस वाला उसको संभालने की कोशिश करता है, जिसको कहते हैं कि जो अपने आप को डिपिक्ट करता है कि ही मैटर्स, ही कैन जो है गेट हिम ट्रांसफर्ड, और ही कैन गेट हिम ट्रांसफर्ड इन पॉजिटिवली। तो वो ऐसी सभी जो है ना शक्तियों को, जो कहते हैं ना कि घाट घाट के देवताओं की वो पूजा करता है, वो चाहे पत्रकारों के रूप में हो, चाहे वो जो है समाज के जो है वेस्टेड इंटरेस्ट के रूप में हो,
चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप में हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे जो भी हो, वो जो कोई ये उनको विश्वास दिलाने की में सफल हो जाता है कि वो देवता स्वरूप है, तो पुलिस उसको देवता स्वरूप जो है ना पूजना चालू कर देती है अपने सर्वाइवल के लिए। यदि उसे मालूम हो कि हमारा सर्वाइवल हमारे इस काम से है और ये हमारा जो इंडेक्स है यही हमारे आगे चल के सबसे बड़ा कारण बनेगा, यही हमारी ACR है, तो आपको किसी को कुछ नहीं समझाना पड़ेगा, वो अपनी एनर्जी अपने आप जो है ना इस चीज में डाल देगा। अभी जो है उसकी जो है पोस्टिंग किन्हीं दूसरे कारणों से होती है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ना होने के बावजूद भी वहां पे वो बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई इलाबोरेट सिस्टम नहीं है जो रियल टाइम बेसिस पे परफॉर्मेंस कैप्चर करे। नाउ दिस सिस्टम वुड बी कैप्चरिंग द परफॉर्मेंस on the real time basis about the various micro element. SP तो ACR लिखता है सुपर 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 मैक्रो एलिमेंट पे, क्योंकि उसे कुछ मालूम ही नहीं रहता है। टेक्नोलॉजी को और सिस्टम को इतनी माइक्रो चीजें मालूम होंगी कि इसे फोटो लेने में 15 सेकंड लगे या 25 सेकंड लगे या 1 मिनट लगे। गुप्ता जी, मैं कितनी बार सिस्टम ने कहा कि आपका जो क्वालिटी आपने फोटो के लिए ठीक नहीं है, इसमें ये चेंज लाओ, और उसको जो है ना फिर 1 मिनट लगा उस फोटोग्राफ को लेने पे और उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन सभी परफॉर्मेंस के छोटे छोटे इंडेक्स मिलके एक सुपर जो है ना एक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। आगे चल के हम ये निर्णय भी ले सकते हैं कि यदि आपका परफॉर्मेंस इससे अच्छा मतलब ऊपर नहीं है तो आप फील्ड में पोस्टिंग ही नहीं पा पाते हैं। यदि एक बार हमने इस तरीके के निर्णय यदि ले लिए तो फिर आदमी की पूरी एनर्जी वहां चली जाएगी। वो चमचागिरी वाले या खुशामदी वाले या किसी को खुश करने के लिए जो काम कर रहा है वो उससे अपने आप अपनी उधर एनर्जी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारा कल्याण जो है इस नंबर में छिपा हुआ है और ये नंबर जो है, ये दुष्ट जो है, सब चीज रियल टाइम बेसिस पे कैप्चर कर रहा है। हम चमचेगिरी से उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो जितनी भी आपने समस्याएं बताई हैं, ये समस्याएं स्वतः विलोपित हो जाएंगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छी बात कही है और वो ग्राउंड रियलिटी है, उससे मैं जो है ना तो इनकार कर सकता हूँ और मेरे इनकार करने से कुछ होने वाला भी नहीं है, बिकॉज दैट इज द नंगी हकीकत है, दैट इज द हार्श ग्राउंड रियलिटी। तो सवाल उठ उस हार्श रियलिटी को हैंडल करने की बजाय, एजुकेट करने की बजाय, if we are bringing this kind of the technological solution, hence the energy will start flowing in the right direction because there will be no other option. So police officer then will be focusing how to जो है ना improve their performance index. तो एक सवाल उठ रहा है मुझे, अब एक इशू ये है कि क्या ये सिस्टम आएगा? शास्त्री सर यहाँ पे, शास्त्री सर और मैथिली सर यहाँ मैं आप दोनों को रोकूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नितिन सर से कुछ पूछने के लिए। वो बहुत देर से सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी तक इसको टेपर कर लें। अभी जरा प्लीज जी थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा। शास्त्री जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने कहा है कि क्या ये ऐसा सिस्टम आ पाएगा? तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं आ पाएगा। यदि ऐसा सिस्टम हमको लाना है तो जनता को जागृत होना पड़ेगा। आप जैसे वकीलों को आगे आना पड़ेगा, PIL के थ्रू इसे फंडामेंटल राइट बनाना पड़ेगा आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी लाइफ का ही दूसरा हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये कह सकती है कि राइट टू लाइफ मीन्स नॉट एग्जिस्टेंस लाइक मेयर एन एनिमल बट ए एग्जिस्टेंस लाइक ह्यूमन बीइंग, ए लाइफ ऑफ ए प्रॉपर ह्यूमन बीइंग, तो उसने राइट टू एजुकेशन उसी से दे दिया, राइट टू फूड उसी से दे दिया, राइट टू एनवायरनमेंट उससे दे दिया, राइट टू हेल्थ उससे दे दिया। लेकिन जो चीज उसे देना चाहिए वो अभी तक माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दी है। भाई साहब, जो है आपका लाइफ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप लाइफ कहेंगे तो उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी इज अनदर फेस ऑफ द सेम लाइफ। तो उसे तो जो है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 होना ही चाहिए। और इसके बाद जो है ये नियम भी आना चाहिए, और यदि हम ये सब नियम लाते हैं
तो ये परफॉर्मेंस इंडेक्स से लेके हर चीज आ जाएगी एंड लोगों को वो लाभ मिल पाएंगे जो अभी ट्रेनिंग से नहीं मिल पाते हैं, जो समझाने से नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये विशेष सर्कल है, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, ये निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल काम है। और हम इसी भागदौड़ में लगे रहेंगे कि पहले मुर्गी पहला अंडा। तो ये मुर्गी और अंडा दोनों चीजों को छोड़ें, हम उसका एक सेपरेट सॉल्यूशन निकालें और वो सॉल्यूशन इतना पावरफुल हो कि आदमी को चूंकि अपना हित समझ में आता है, आज वो चमचागिरी इसलिए करता है क्योंकि उसे चमचागिरी में अपना हित दिखाई दे रहा है। जब उसे समझ में आएगा कि मेरा हित केवल इस नंबर में जुड़ा हुआ है, तो वो पूरी शक्ति उस नंबर में अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कर देगा। अल्टीमेटली हम लोग IAS IPS सब बने हैं तो उस नंबर के सहारे ही तो बने हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नंबर लाए, उससे जो ना रैंक मिली, उसी से सर्विसेज मिली, उसी से कल्याण हुआ। तो यदि यही जो है ना भरोसा थाना प्रभारी को हो जाए, बाकी पुलिस वालों को हो जाए कि ये जो नंबर है इसी से जो है ना उनका कल्याण होने वाला है, इसी से उनको प्रमोशन होने वाला है, इसी से उनको पोस्टिंग मिलेगी, इसी से उनको फॉरेन असाइनमेंट मिलेंगे, इसी से उनको तमगे मिलेंगे, तो पूरी कवायद बदल जाएगी। हमें वर्तमान हकीकत से और ये जो टेक्नोलॉजी एंड पूरी पब्लिक वॉलंटियर्स और टेक्नोलॉजी और पूरा सिस्टम जो ऑफर कर रहा है, दैट इज गोइंग टू चेंज द वेरी वे वी इंटरेक्ट। जब तक हम इसको बारीकी से नहीं समझेंगे तो हम बहुत सारी जो पेरिफेरल चीजों पे चर्चा करते हैं, वो पेरिफेरल इश्यूज जो है दे विल बिकम नॉन इश्यूज। शास्त्री जी, आप किस हद तक मेरी बात से सहमत हैं? आई एम अप्रिशिएटिंग इट। बिल्कुल, ओके, थैंक यू। नितिन जी अब तो बोलना चाह रहे हैं। जी, तो अब जो है मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था कि नितिन जी जो है रिच एक्सपीरियंस है, हम लोग अपनी चर्चा को यहाँ पे रोकते हैं और हम लोग सुनना चाहेंगे कि नितिन जी बहुत ही इनको इंडस्ट्री का अनुभव है, इनको एजुकेशन का अनुभव है। आपने 2 जो है ना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हुए हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में फंक्शन कर रहे हैं, और आई बाउच जो है इनके जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है दैट इज़ वेरी हाई एंड बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी वेरी हाई। इनके यहाँ पे बहुत सारे टीम्स जो है ना हमारे साथ काम कर रही हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन से डिज़ाइन कर रहे हैं। इनके इंडस्ट्री से, इस एजुकेशन से और बाकी चीज़ों से जुड़े ढेर सारे अनुभव होंगे। हम चाहेंगे कि उस अनुभव का हम सबको लाभ मिले और फिर आपके उससे जुड़े हुए निश्चित तौर पे कुछ ऐसे सवाल होंगे जो क्राइम फ्री भारत और उससे जुड़े हुए जो बहुत सारे भारत हैं उसमें कहीं ना कहीं रिलेवेंस वो रखते होंगे। तो आप जो है अपना वो रखिए, पक्ष रखिए, अपना अनुभव रखिए और फिर हमसे पूछिए और लौट के फिर शास्त्री साहब के पास पुनः आएंगे, क्योंकि शास्त्री साहब के पास तो खजाना है। तो अपन जो है सबको मौका देके दोबारा फिर शास्त्री जी के पास वापस पहुंचेंगे। Good evening, distinguished guest. Actually, I'm honored to be on this panel. I was listening to most of the people and we were discussing basically what is the problem, most of the problem with the police force. That is one side of the story. What, sir, you are doing, transparency in the system, I think that is the need of the hour. The more transparent system you make, the less human error will be there. And when less human error is there, the things will automatically improve. This is one part which our team is also already working with you. The second thing which I want to repeat, or it's again a repetition of what the earlier speakers were saying, कि लोगों में भरोसा, ट्रस्ट लेवल एंड अवेयरनेस बहुत कम है पुलिस के बारे में रहो या इवन हाउ टू फाइल अ बेसिक कंप्लेंट. What is a complete complaint, in the sense whether I just go to the police station? Honestly, in last 35 years or 40 years, I have not gone to the police station so far, except one time when there was a problem with my scooter. और scooter चोरी हो गए थे तो उस time पे एक ही बार गया था. But we really don't know how it has to be done, how the complaint has to be lodged, whether it is a complete complaint or not, what are the next steps to be taken. So what I feel, as we are developing one system using all the latest technologies, you need a lot of volunteers to come and help you with this, because you need to install all these things in different communities and areas where volunteers will come and also help you in sending the information if somebody is not able to do it.
Now, for you to attract a lot of volunteers, I am right now not sure, because people have a lot of doubts in the mind. What will happen to me when my names get exposed, when they know that I am the volunteer and all that? So what I feel is, like, now if you take the curriculum of our UG course in BTech, they have introduced recently two courses, which is, one is gender sensitization, basically how you have to interact with fellow girl student, what are the do's and don'ts. There is one module which they have created recently. Similarly, environment studies, which is also going to be a very important thing in the world. Because of environment, there are going to be so many problems. They have also introduced one module on environmental studies. Similarly, what I feel is, there also has to be one module on all these topics which I was telling you about, like what are the rights of a common person when he goes particularly to a police station, or how a FIR is lodged, when the FIR is complete. It may be a module of 4, 5 hours or 10 hours, which can be incorporated in the curriculum itself, whether it is a UG curriculum of engineering, or PG of degree, or UG of degree also, because at that age students are quite mature to understand, and that will also motivate them. Maybe if you complete that certification, you give them a star, as you rightly said, you give them some motivation, so they can be your future volunteers, which can be parallel to what you are doing, because anyhow this is going to take some time to develop. And once you start implementing all these things, you require volunteers. So if you start implementing this a module, I think that will help you a long way. That is what I feel, because trust level it's really very poor, and awareness is also not there. देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और आपके बहुत रिच एक्सपीरियंस से वो इमर्ज हो रहा है। तो मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूँ, लेकिन हमारा परोसने का जो मेथोडोलॉजी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा कहना ये है कि आप अवेयरनेस बढ़ाने के चक्कर में मत रहिए। हालांकि हम आपसे 200% एग्री हैं कि ये जो भी चीज़ है ये करिकुलम में आ जाए, नॉर्मल कोर्स में लोगों को मालूम पड़ जाए। बट व्हाट आई फील कि इस अवेयरनेस के साथ साथ जो है, जब हम उसको 4 तरीके की रेवेन्यू स्ट्रीम देंगे और जब हम उसको शुरू से ही इंटीग्रेट कर लेंगे, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो अवेयरनेस कम इंटीग्रेशन का जो फंडा है वो वॉलंटरी ऐप खुद ही अपने आप में है। इट इज ए सच ए पावरफुल ऐप। इसके 4 हिस्से हैं, मैं उसको थोड़ा सा आपको बारीकी से समझाता हूं। और वो 4 हिस्से इतने पावरफुल हैं कि हर किसी को अपने आप मालूम पड़ जाएगा और उसको सिस्टम जो है ना उनको जोड़ेगा भी। बेसिकली जो वॉलंटियर ऐप है ये 4 इसमें हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सिक्योरिटी, दूसरा हिस्सा है आपकी जनरल नीड, तीसरा है आपकी निश नीड। निश नीड का मतलब है आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उससे संबंधित आपकी आवश्यकताएं, और चौथा है इंफॉर्मेशन नीड। तो ये 4 नीड को जो है सीधे सीधे एड्रेस कर रहा है। ये आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। इस ऐप के बिना आपको जो है ना आपका कोई काम ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको हर चीज में मदद कर रहा है। अब हम सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी वाले उसको समझाते हैं कि उसका जो सिक्योरिटी टैब होगा वो क्या कमाल करेगा। तो सिक्योरिटी टैब जो है इसको खुद को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है जिसके माध्यम से आप जो है अपनी FIR करा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। कैसे कराएंगे वो हम थोड़ी देर से बताते हैं। और ये जिसके पास ऐप नहीं है, जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसको टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है, उसकी भी मदद करने का इसमें प्रावधान है। वो कैसे करेंगे वो भी हम थोड़े से बाद में बताते हैं। पहले जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो इसका जो सिक्योरिटी टैब है इसके खुद 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि कैसे आप जो है सीधे बिना थाने जाए FIR करा सकें या आप कंप्लेंट करा सकें। FIR होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ये ऐप जो है कुछ वॉलंटियर्स को और लीगल ग्रुप को इन्वॉल्व करके आपको वो भी करके देगी जो पुलिस के का ना तो दायित्व है, ना पुलिस कर सकती है, ना पुलिस करने की क्षमता रखती है। दैट इज द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये सिस्टम जो है इट विल बी पावरिंग
the volunteers for investigation of the non-cognizable offense and it will involve lawyers. तो लॉयर को इन्वॉल्व करके इसको प्राइवेट कंप्लेंट के बतौर सेक्शन 200 से 204 जो है सीआरपीसी की धाराएं हैं, जिसमें कि कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट को इंटरटेन करने का जो है ना प्रोविजंस हैं। तो ये सिस्टम जो है मेकिंग यूज ऑफ इस ओन नेटवर्क एंड हायरार्की आपको केवल संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज कराने में, वो भी बिना थाने जाए, मदद करेगा और आपको नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी मदद करेगा। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में वी कैन कीप सम टोकन फीस आल्सो सो दैट वी कैन हैव वन एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम टू द लॉयर्स दोज हु आर वर्किंग और टू द वॉलंटियर्स आल्सो। क्योंकि यदि जो मुफ्त सेवा है, राष्ट्रीय देशभक्त की सेवा के बतौर यदि हम किसी चीज को कॉन्सेप्ट को रखेंगे तो वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। उसको यदि हम रेवेन्यू स्ट्रीम से बांध देंगे तो वो इतने दौड़ के चलेगा कि उसको जो है ना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया पहला उसका सिक्योरिटी टैब का पार्ट 1, एफआईआर और कंप्लेंट विदाउट गोइंग टू थाना। और ये एफआईआर वो एफआईआर नहीं है जो अभी पुलिस वाले कहते हैं। आपने जहां भी लिखा है कि ऑनलाइन एफआईआर की जाती है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। एफआईआर के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है एफआईआर का कंटेंट, दूसरा हिस्सा होता है कंप्लेनेंट के सिग्नेचर और तीसरा हिस्सा होता है कि थानेदार के सिग्नेचर। अभी कोई भी सिस्टम ये तीनों काम एक साथ नहीं कर रहा है, लेकिन जो सिस्टम हमने बनाया है उस सिस्टम में ये तीनों काम सिस्टम के अंदर हो रहे हैं। इवन 3,500 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी सीसीटीएनएस के अंदर एफआईआर नहीं बनती है। हम जो है ना सिस्टम में टाइप करते हैं और उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, कंप्लेनेंट उसमें सिग्नेचर करता है, थानेदार सिग्नेचर करता है, तब वो एफआईआर बनता है। और ये एफआईआर उससे भी ज्यादा है। कई तरीके से ऐप के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, कैश के माध्यम से, वॉलंटियर्स के माध्यम से, इवन आईओटी डिवाइसेस के माध्यम से हम जो है आपके पास पहुंच के बिना पुलिस के और बिना थाने जाए आपकी एफआईआर वहीं मौके पर दर्ज होगी। और बैकएंड इंटेलिजेंस, एनिमेटेड फिगर, वर्चुअल जो है ना पुलिस स्टेशन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वुड बी क्रिएटेड इन दैट ऐप एंड ऐप वुड बी हैविंग ऑल इंटेलिजेंस टू कैप्चर ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ क्राइम। तो वो ना केवल जो है पूरी एफआईआर की जानकारी लेगा आपसे, आपको कोई जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। नितिन जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपको कोई ज्ञान बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बिना ज्ञान के बैकएंड इंजन आपसे वो सब जानकारियां खींच लेगा जो कि एफआईआर के कंटेंट के लिए जरूरी है। और उसमें वो सेक्शन, और वो सेक्शन किस एक्ट का है, आर्म्स एक्ट का है, एनडीपीएस एक्ट का है, डॉरी एक्ट का है, क्या है, वो सब को खींच के वो सेक्शन भी लगा देगा। इसके बाद उसका जो नेक्स्ट इंजन है, एक मॉड्यूल आपके यहीं पर डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिग्नेचर मॉड्यूल। वो सिग्नेचर मॉड्यूल जो है ना 4 तरीके के सिग्नेचर की व्यवस्था कर रहा है। पहला सिग्नेचर जो है, हमने फोटो को फोटो सिग्नेचर नाम दिया है। इट मीन्स आप जो है ना फोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं, सिस्टम फोटो खींच रहा है और आपकी फोटो खींच रहा है और डेट एंड टाइम और लोकेशन को हैश वैल्यू के साथ प्रोटेक्ट कर दे रहा है। तो दैट विल बिकम योर फोटो सिग्नेचर and this will also be protected through the blockchain technology. तो no manipulation is possible. तो जो टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन के लिए अवेलेबल भी है, चाहे वो डीप फेक हो या कोई दूसरी हो, वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस होने के बावजूद भी द टेक्नोलॉजी विल बी हैविंग नो स्कोप टू डू एनी मैनिपुलेशन, नंबर 1। देन जो दूसरा सिग्नेचर है ऑप्टिकल सिग्नेचर। तो आप अपने मोबाइल के ही स्क्रीन पे सिग्नेचर करेंगे, वो सिस्टम कैप्चर कर देगा एंड दैट विल बिकम योर ऑप्टिकल सिग्नेचर, जिसको आप सिग्नेचर कहते हैं, वो सिग्नेचर बन जाएगा। और वो सिग्नेचर भी डेट, टाइम और लोकेशन स्टैम्प के साथ जो है इनक्रिप्ट हो जाएगा, हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर आपको वो तीसरा सिग्नेचर देता है जो कि आधार ओटीपी बेस्ड सिग्नेचर, जिसमें हमारे एक मित्र ने कहा कि साहब वो तो आधार तो आपसे कुछ डाटाबेस शेयर नहीं करेगा। तो मैंने कहा हम कोई डाटाबेस किसी आधार से नहीं मांग रहे हैं, हम तो उसकी जो है जो नॉर्मल सेवा वो दूसरों को बेच रहा है, हम पहले कहेंगे हमको फ्री में दे दो, नहीं तो जो हमसे भी फीस ले लो। यदि हमसे फीस लोगे तो जो भी रेवेन्यू हमारे पास आएगा उससे वो कट जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड देन आधार का ही एक और जो है एक दूसरी सेवा है, दैट इज वर्चुअल आईडी बेस्ड सिग्नेचर। तो जिसमें कि आपका आधार नंबर का यूज नहीं होता है, वर्चुअल आईडी का यूज होता है। तो ये 4 प्रोविजन उसमें होंगे और ये 4 प्रोविजन में 2 लास्ट वाले जो प्रोविजन है वो मैंडेटरी नहीं होंगे।
क्योंकि हमें ऐसे लोगों को भी कैटर फॉर करना है जिनके पास आधार नंबर ना हो, या उनका आधार नंबर उनके मोबाइल से लिंक ना हो, या वो विदेशी नागरिक हो। अपराध तो विदेशी नागरिकों के साथ भी हो सकता है, उनके पास तो आधार नंबर नहीं होगा, इसलिए वो फर्स्ट टू सिग्नेचर सबके लिए मैंडेटरी होंगे, लास्ट टू सिग्नेचर विल बी ऑप्शनल टू ऐड ऑथेंटिसिटी। वैसे देखा जाए तो उन लास्ट के 2 सिग्नेचर को हम चाहें तो ऑल टुगेदर हटा सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ना तो लीगल रिक्वायरमेंट है, ना आवश्यकता है। यदि बाद में सब लोगों का ये सलाह हुआ तो हम वो 2 सिग्नेचर को निकाल भी देंगे। देन वी विल मेक ओनली 2 सिग्नेचर, फोटो सिग्नेचर एंड ऑप्टिकल सिग्नेचर। देन जो है ये डायरेक्टर एनसीआरबी को हमने एक प्रेजेंटेशन दिया था, एक बड़ी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने हमको उल्टा रिक्वेस्ट किया है कि हम जो है अपने ऐप के माध्यम से एफआईआर को सीसीटीएनएस में डालें। नाउ ए फॉर्मल रिक्वेस्ट इज पेंडिंग विद अस, जिसमें हम वी आर ऑलरेडी रेडी विद दैट। वो ये कह रहे हैं कि आप सिटीजन पोर्टल के ब्रिज का यूज करके आप सीसीटीएनएस में घुस जाइए और आप जो है ना थानेदार के डेस्कटॉप पे अवतरित हो जाइए। तो हमारे एफआईआर का कंटेंट और सिग्नेचर के साथ वो जो है सिटीजन पोर्टल के ब्रिज को नेगोशिएट करते हुए सीसीटीएनएस में इंटर कर जाएगा और वो थाना प्रभारी के डेस्कटॉप पे इमर्ज हो जाएगा कि देखिए साहब ये जो है ना एफआईआर का कंटेंट है, उसमें ये सेक्शन बन रहे हैं और ये जो है ना संबंधित के सिग्नेचर हैं, अब आप इसमें आप अपने सिग्नेचर कर दो तो ये एफआईआर बन जाएगा। तो हमारे एक मित्र ने कहा कि साहब भाई उसमें 154 में तो लिखा हुआ है कि पुलिस वाले का जो है ना थानेदार का सेटिस्फेक्शन होगा तभी वो सिग्नेचर करेगा। तो हमने कहा हम उसको वो भी प्रोविजन दे देते हैं। तो यदि आपके पास कोई ऐसे आधार या रीजंस हैं जिसके कारण आपको लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है तो आप प्लीज। Sir, whatever you have described is absolutely correct. I mean, the technology is going to take care of almost 90, 95, 99% of the work. But the last mile still will be a person. नहीं, अभी नितिन जी मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने दीजिए, आप कन्विंस हो जाएंगे। तो जो है ये थानेदार को हमने प्रोविजन दिया है कि यदि उसके पास कोई कारण है रिफ्यूज करने का तो ही कैन राइट 1, 2, 3, 4 जो भी उसको लिखना है और उस पर अपने सिग्नेचर करें। अब कानून ने तो बहुत अच्छा कानून बनाया है। कानून में उसी में जिस 154 के तहत हम एफआईआर लिखते हैं, आपकी एफआईआर जो लिखी जाती है वो सेक्शन 154 और सीआरपीसी के तहत लिखी जाती है और उसी सेक्शन का एक सब सेक्शन है 154(3). वो कहता है कि यदि थानेदार आपकी एफआईआर ना लिखे तो आप एसपी के पास चले जाइए, आप उसको पोस्ट से भी भेज दीजिए और वो जो है ना उसको मान्य करेगा तो तत्काल जो है ना वो एफआईआर कर दिया जाएगा। देन एसपी को पावर दिया गया है कि ही कैन इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ और वो किसी को इंक्वायरी दे सकता है, किसी को इन्वेस्टिगेशन दे सकता है। वो जिस किसी को भी इन्वेस्टिगेशन देगा, वो जरूरी नहीं कि उस थाने का हो, वो ही विल हैव ऑल द पावर ऑफ स्टेशन हाउस ऑफिसर फॉर दैट केस। तो हमने एक किसी भी हवलदार राम सिंह को वो केस मार्क कर दिया तो हवलदार राम सिंह उस पर्टिकुलर केस के लिए उनके पास लीगली सभी थानेदार के अधिकार आ जाएंगे एसएचओ के उस केस के लिए। उनको जाके एसएचओ जो है ना मनोहर सिंह को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दिस इज ए लीगल पार्ट। अब जो है तो सिस्टम क्या कर रहा है कि फरियादी ने तो एक बार कह दिया, इसके बाद फरियादी को तंग नहीं करता है, वो खुद ही जो है एसपी के पास पहुंच जा रहा है क्योंकि सभी के पास डेस्कटॉप है, सभी के पास सीसीटीएनएस में। तो अभी वो थानेदार के जो है ना कंसोल से उठा और जाके वो इंटर कर गया एसपी की कंसोल में और उसने कहा हे हमारे पास ये एफआईआर है जिसमें इन सेक्शन का ऑफेंस बन रहा है, ये उसके सिग्नेचर हैं, आपके थानेदार साहब कह रहे हैं कि साहब इन कारणों से हम तो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो आपका 154(3) में आपके ऊपर कानूनी जिम्मेवारी सौंपी गई है, कृपया आप अपनी कानूनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। अब फिर हमने सोचा कि एसपी के ऊपर भी कोई दबाव हो सकते हैं, तो हमने कहा भाई एसपी साहब आपको भी हम मौका देना चाहते हैं, आप भी लिख दो रीजन कि हम इन कारणों से इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं मानते हैं। जैसे ही एसपी अपने कारण लिखता है और सिग्नेचर करता है, सिस्टम पूरे लवादे को उठा के फिर से जो है ना जाके फरियादी के पास जाता है, कंप्लेनेंट के पास जाता है। वो कहता है कि भाई आपने मुझे जो कुछ बताया है उससे ये अपराध बनता है। एसएचओ का कहना ये है, एसपी का कहना ये है, आप ये बताइए क्या आप इस केस को आगे परस्यू करना चाहते हो या आप ड्रॉप करना चाहते हो।
लेकिन हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि यदि आप इसे ड्रॉप करना चाहोगे तो हम ये मानेंगे कि आपने जो हमको पहले शिकायत की थी वो आपने हमारे अधिकारों का किसी दूसरे को परेशान करने के लिए आपने उपयोग किया है। और ये जो है इसी सीआरपीसी का सेक्शन जो है 182 है, नहीं आईपीसी का सेक्शन है 182, जिसमें ये ऑफेंस है। तो वो 182 211 में कहेगा कि यदि आप विड्रॉ करते हैं इस स्टेज पे तो हम ये मानेंगे कि आपने हमारी अथॉरिटी का दुरुपयोग किया है और हम आपको 182 211 के तहत प्रोसिक्यूट करेंगे। तुमने जैसे ही यू डोंट वांट टू कंटिन्यू और यू वांट टू ड्रॉप, जैसे ही ड्रॉप करोगे वो पूरे लवादे को ले जाके एक इस्तगासे के रूप में कोर्ट में पेश कर देगा। क्योंकि हम जो है फरियादी को झूठी रिपोर्ट देने का भी जो है ब्रह्मास्त्र नहीं देना चाहते हैं। जहां हम सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग एंड कॉग्निजेंस कर रहे हैं, सर्टेनिटी एंड ऑफ द कॉग्निजेंस ऑफ रिपोर्टिंग विद द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। झूठा बोलोगे तो जेल जाओगे ना। अब वो कहता है कि नहीं मैंने तो सही बोला था, तो जैसे ही वो कहेगा यस आई वांट टू परस्यू, एक एफिडेविट क्रिएट हो जाएगा और उससे कहेगा कि साहब इसमें डिजिटल सिग्नेचर करो। जैसे ही वो अपना डिजिटल सिग्नेचर करेगा वो उस पूरे लवादे को लेके जो है ना कोर्ट के पास चला जाएगा। इस सिस्टम के पास सभी दरवाजे इसको मालूम है, तो उसको बिना किसी के पास जाए वो अंदर ही अंदर उस कोर्ट के पास पहुंच जाएगा और कोर्ट से कहेगा कि देखिए भाई, सीआरपीसी की धारा 156(3) में, सेक्शन 156(3) में रेड विथ सेक्शन 190 सीआरपीसी, आपको ये जिम्मेवारी दी गई है कि यदि पुलिस रिपोर्ट ना लिखे तो आप इस धारा के तहत उनको निर्देश दें और हमारी एफआईआर लिखाएं। तो भाई साहब, अब आपका दायित्व है, आप अपना इस कर्तव्य का जो कि कानून ने आपके ऊपर दिया है इसका पालन करिए। अब वो अज्यूम करिए कि कोर्ट भी कहता है कि नहीं साहब, हमें इन कारणों से हम जो है ना नहीं मानते हैं, तो उसमें हाई कोर्ट का दरवाजा भी है। मतलब ये सिस्टम जब इतनी जो है ना आपको सपोर्ट करेगा तो किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने डिस्क्रिशन को गलत ढंग से यूज नहीं कर पाएगा। अब मैं नितिन जी से पूछना चाहूंगा कि आपका ये जवाब हुआ, क्योंकि मैं अभी सिर्फ एफआईआर पे हूँ, फिर सेकंड जो है ना फीडबैक के ऊपर है, ऑब्जर्वेशन एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। आप अपनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी और अवेयरनेस दो। No, it's absolutely correct, sir. I mean, whatever you explained is 100% correct. I was just thinking that this flowchart has to be known to people who are going to use this application. आपको that is all it is. I mean, सिस्टम को मालूम है, वो आपको बिना देखिए आपको वो तकलीफ नहीं दे रहा है, वो अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। तो आपको क्यों मालूम होना है? वो आपको सब बता दे रहा है कि एसओ ने क्या कहा, एसपी ने क्या कहा, फिर आपसे कह रहा है कि भाई देखिए आप इसे कंटिन्यू करना चाहते कि नहीं करना चाहते हैं। वो आपको आगाह भी कर रहा है कि यदि आप इसको कंटिन्यू नहीं करोगे तो हम ये मानेंगे कि आपने हमसे झूठी बात कही है, और झूठी बात कहना अपराध है। तो हम आपको जैसे ही आपने नो कहा, हम आपको जाके सीधा जो है ना कोर्ट में आपको पुटअप कर देंगे। तो हम आपके जेल जाने की व्यवस्था तो करा देंगे। So there is a push and pull mechanism of messages. Push and pull mechanism of messages. So every time he'll get a message saying that this is the stage of your. नहीं, कोई मैसेज नहीं चल रहे हैं। This whole content is going through the CCTNs and emerging on the No, that I understood, sir. No, I am talking about the office है ना, it is something like paperless office. आपकी जैसे हमने फाइल की तो आप यदि हमारे सुपीरियर हैं तो वो फाइल ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाती है, आपके यहाँ पेंडिंग दिखने लग जाती है। जैसे आप एड्रेस करेंगे तो उसको जहां नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग के पास जाना है वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। कोई मैसेज किसी के पास नहीं आते। यदि मैसेज आएंगे भी तो दे विल बी एक्स्ट्रा एंड अबव। मतलब no, फिरियादी के पास तो आएगा ना सर कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द केस। इट्स नॉट अ मैसेज, इट इज द स्टेटस। मैं उस प्रक्रिया को अभी आप मुझे याद दिला देना, मैं उसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत एलाबोरेट प्रोविजन है। अच्छा, तो मैं उसको बहुत विस्तार से और अच्छे ढंग से बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अब अभी अपन जाते हैं तो वो इसमें जो है ये पूरा कंटेंट, जैसे कि हमारी पेपरलेस ऑफिस होता है ना, ऐसा ही होल कंटेंट इज मूविंग एंड इमर्जिंग ऑन द डेस्कटॉप ऑफ द पर्सन। और वो जो है ना इलेक्ट्रॉनिक ऑलरेडी बैकएंड पे है। हमारी टीम, आपके यहाँ की टीम उस पर काम कर रही है, लेट मी टेल यू। तो हमारे 12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पे काम कर रहे हैं और ये दूसरा इस पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इट विल बी इमर्जिंग ऑटोमेटिकली। अब इसके बाद जो इसका जो सिक्योरिटी का जो सेकंड कंटेंट है फीडबैक। हम सब लोग सैकड़ों चीजें देख रहे हैं, उनमें से कुछ अच्छी हैं, कुछ खराब हैं। हम अच्छी बात भी किसी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और खराब बात भी किसी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं।
तो ये ऐप आपको जो कुछ भी आप देख रहे हैं दृष्टा, जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो अच्छी चीज को आपको पहुंचाने में मदद करेगा। और जब मैं इस बात को कहता हूं तो एक मैं पर्सनल एग्जांपल देता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो पर्सनल एग्जांपल कहना। मैं जब SRP जबलपुर था, एक ट्रेनिंग में गया, मिसेज गुप्ता वाज विथ मी, रेवाली टाकाज में हम लोगों ने नाइट फिल्म देखी। बाहर निकले तो वही 12, सवा 12 बजे या 12:30 बजे, जितने बजे भी फिल्म छूटी, हम लोग बाहर निकले। उस समय मैं मध्यावर्त में रुका हुआ था जो सरदार पटेल मार्ग पे था। अब कोई भी ऑटो वहां जाने के लिए तैयार नहीं। उस समय वहां पर 100 नंबर की गाड़ी चलती थी, तो मैंने देखा कि 100 नंबर की गाड़ी निकल रही थी, तो मैंने हवलदार साहब को हाथ देकर रोका, तो उनको अपनी समस्या बताई कि मुझे सरदार पटेल मार्ग जाना है, कोई जा नहीं रहा है। तो उन्होंने एक ऑटो को बुलाया, उसका गाड़ी का जो ना ऑटो का नंबर लिखा और उससे कहा कि देखो मैंने तुम्हारा ऑटो नंबर लिख लिया है, आप जो है ना बच्चा लोगों को लेके जाओ और ठीक ढंग से पहुंचाना। और उसने प्यार से फिर मेरे सिर पे हाथ फेरा। अब ये तो पक्की बात है कि हवलदार साहब को यदि ये मालूम होता कि इतने बड़े अधिकारी हैं ये, तो उसकी कदापि हिम्मत नहीं होती कि बच्चे जैसा मेरे सिर पे हाथ फेरे। इसका मतलब उसने जो कुछ भी किया था बिल्कुल अपना पदी कर्तव्य मानते हुए उसके अंदर की भावना के तहत उसने कार्रवाई की थी। और उसने जो बच्चा लोग कहा और सिर पे हाथ फेरा, वो उसकी अंदर की भावना थी। अगले दिन जो है मैं 5 बजे अपने ट्रेनिंग का वो खत्म होने के बाद मैं सीधा वहां से पहुंचा और DCP ट्रैफिक के अधीन हुआ करता था उस समय 100 नंबर। तो मैं DCP ट्रैफिक साहब के पास गया और मैंने उनको पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आप इस हवलदार को इनाम दीजिए, क्योंकि हम ऐसी पुलिस चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि मैं एक IPS ऑफिसर था, मैं DCP साहब तक पहुंच गया, उन्होंने मेरी बात मान भी ली, उसको इनाम भी दे दिया। आम जनता अपने पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को भी क्यों ना पहुंचाए, सिस्टम में दे दो, सिस्टम अपने आप पहुंचा देगा और उसमें ये भी सुनिश्चित करेगा कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी भी चेक करे और उसमें उसको इनाम मिले, ये भी देखे। ऐसे ही आप नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है जो खराब दिख रही है, आपके सिर पे ही कोई चीज पड़ जाए, अपराध की कैटेगरी में बन जाए, तभी क्यों आप देंगे। तो आप नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं, दैट विल बी परसूड टोल। जैसे देखिए हमारी तो आदत परसू करने की पड़ गई है कि SO ने नहीं मानी तो SP के पास गए, SP की नहीं मानी तो कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने नहीं मानी तो हाई कोर्ट चले गए। तो ऐसे ही जो है इस केस में यदि जो हमारी बात जब तक लॉजिकल एंड तक निकाल नहीं होगा, और लॉजिकल निकाल क्या होता है, यदि नेगेटिव ऑब्जर्वेशन है तो नेगेटिव पनिशमेंट या नेगेटिव इन्फोर्समेंट, और यदि कोई पॉजिटिव बात है तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड, रिकॉग्निशन, सर्टिफिकेट, व्हाटएवर इट इज। जब ये चीज होगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना चाहेंगे। दिस इज द सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में एक अटैच्ड है, दैट इज कैप्चरिंग एविडेंस। तो पुलिस जो एविडेंस कैप्चर करती है वो तो कचरा होता है। पुलिस को जो है ना, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, दैट इज जो है कैन ओनली बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन। जो 161 में पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है उसका करोबरेशन के लिए यूज कानून में बाधित है। उसको केवल पुलिस की स्टोरी को गलत सिद्ध करने के लिए यूज किया जा सकता है, ये कानून है, ठीक है ना। ऐसे ही जो है कॉन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट। 27 में थोड़ी सी विंडो दी है कि यदि उससे कोई डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट होती है तो केवल उतना पोर्शन ही एडमिसिबल होगा। तो अज्यूम करिए कोई आके कहता है कि मैंने फलाने व्यक्ति का मर्डर किया है और चाकू से किया है और वो चाकू मैंने फलानी जगह रखा हुआ है, तो उसने मर्डर किया है, ये एडमिसिबल नहीं होगा। हमने चाकू फलानी जगह छिपा दिया है, ओनली दैट मच कंटेंट वुड बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27। तो हमने कानून तो इतना बेकार बनाया है जहां तक कि पुलिस के एविडेंस वैल्यू के बारे में है। जहां तक बर्बरता के बारे में है तो कानून में बहुत ताकत है, ठीक है ना। तो अब यही वैल्यू जो है, यदि जो है ना कम्युनिटी या डिवाइस कैप्चर कर रहा है इसी एविडेंस को, सिस्टम उसको, हमारा ही सिस्टम उसको उसी समय पे इनक्रिप्ट कर दे रहा है, जो मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है ना। अब वो जो है ना, चूंकि इस सिस्टम को सब दरवाजे मालूम है, आप उसमें एक विटनेस भी है, तो एक डिजिटल हो गया है, एक आप आई विटनेस टू द सिचुएशन हो गए। आप यदि मोबाइल पकड़े हुए हैं और आपसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इट इज नॉट ओनली द डिजिटल एविडेंस, यू आर द आई विटनेस आल्सो। तो आप एक डिजिटल एविडेंस और एक आई विटनेस, बोथ जो है विल बी रूटेड अगेन थ्रू द सेम सिस्टम, जिसमें अपनी FIR जा रही थी, और वो कंपिटेंट अथॉरिटी के सामने इमर्ज हो जाएगा कि साहब ये वायलेशन हुआ। जैसे ही वो उसमें सिग्नेचर करता है डिजिटल,
तो सिस्टम जो है ना बैक एंड पे आइडेंटिफाई कर रहा है कि हु इज द ऑफेंडर, वो ऑफेंडर के पास पहुंच जा रहा है कि हे भाई आपने ये ऑफेंस किया हुआ है, ये इसके एविडेंस है, ये आपका जो है ना ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो आप इसमें अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो नीचे पेमेंट लिंक है, आप क्लिक करिए और आपके यहीं पे जो है ना ये मॉड्यूल डिजाइन हो रहा है कि ई पेमेंट ऑप्शंस। तो आज के ज़माने में जितने भी पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सब वहाँ क्रिएट किए जा रहे हैं। तो चाहे वो फोन पे हो, चाहे भीम हो, या यूपीआई हो, या क्रेडिट कार्ड हो, या डेबिट कार्ड हो, ऑल ऑप्शंस आर बीइंग क्रिएटेड बाय योर टीम। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक पार्ट जो है ना रेवेन्यू ट्रेजरी में चला जाएगा और दूसरा पार्ट विल फ्लो बैक टू द कम्युनिटी। आपके जो है ना मोटर व्हीकल एक्ट में जो नए अमेंडमेंट हुए उसमें 2000 से कम का फाइन है नहीं, 2000 से 10,000 तक का फाइन है। और तो 50% जो है वो सरकार के खजाने में चला जाएगा और 50% जो है ना चला जाएगा कम्युनिटी के खजाने में। अब अपन एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि 130 करोड़ लोग जो है ना एक बार एक एविडेंस को भी कैप्चर करते हैं। क्योंकि आप देखें, मेरा ऐसा सोचना है कि एक भी जो है व्हीकल, बहुत कम व्हीकल, उनकी जो लाइसेंस प्लेट है दैट इज कन्फॉर्मिंग टू द नोटिफिकेशन, ना उसके अक्षर उस साइज के हैं, ना उस फॉर्मेट के हैं, कहीं कुछ बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है, दिस इज ऑल वायलेशन। यदि हम अकेला नंबर प्लेट के वायलेशन को पकड़ें तो एक बहुत बड़ी राशि जो है ना हो सकती है। और पहले वायलेशन पे 2000 जो है ना का पेनल्टी है, सेकंड वायलेशन पे 5000 की पेनल्टी है और 3 महीने की सजा भी है। अब अज्यूम करिए कि यदि हाइपोथेटिकली कि सभी वॉलंटियर्स जो है, सभी जो है ना पब्लिक के लोग जो है एक बार एक बटन दबाते हैं तो सरकार को 1,30,000 करोड़ 1,30,000 करोड़ की रेवेन्यू पैदा होगी और इतना ही पैसा पब्लिक को भी बढ़ जाएगा। नाउ दैट काइंड ऑफ द माइंड बॉगलिंग मनी जो है ना विल बी कमिंग, राइट। और हमने आपको दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में कहा था कि जो हम सर्विसेज करेंगे उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम भी उनको वॉलंटियर्स को फ्लो होगी। देन हमने तीसरी रेवेन्यू स्ट्रीम कही थी कि जो क्राइम से लेकर डिटेक्शन के बारे में जो इनपुट आएगा उसको हम मैप करके यदि हम उसके सहारे यदि 200 अपराध यदि डिटेक्ट करते हैं और हम एक अपराध के लिए यदि उसको 100 रुपए देते हैं तो ही विल बी गेटिंग द प्रमोशन वाउचर ऑफ द 20,000 रुपीज। एंड चौथी रेवेन्यू स्ट्रीम वुड बी जब हम आपके निस एरिया में मदद करेंगे, दैट विल बी द बिगेस्ट रेवेन्यू विच विल बी कमिंग टू यू। क्योंकि जो किसी भी व्यवसाय में हो, मैथिली शरण गुप्त उसकी मदद करने के लिए उस ऐप के माध्यम से वहां खड़े होंगे और हमारे स्टार्टअप जो है ना आपके लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। इट इज गोइंग टू चेंज द फेस एंड फेट ऑफ दिस कंट्री। तो इस तरीके से ये सिक्योरिटी सेटअप का पार्ट 2 है। देन सिक्योरिटी सेटअप का पार्ट 3 है जिसमें हम आपको टास्क करेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम को मालूम है कुछ, हम आपसे चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई कराएंगे। हम आपको कहेंगे कि साहब ये बंदा यहाँ से निकलने वाला है, प्लीज बी अलर्ट एंड कैप्चर इट। तो हम उसको एज ए एविडेंस पेश करेंगे और आपको जो है उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम पहुंचेगी। तो इस तरीके से 4 रेवेन्यू स्ट्रीम हर व्यक्ति तक पहुंचेगी यदि ये ऐप। अच्छा, दिस इज ऐप का जो है ना पार्ट 1 हुआ सिक्योरिटी टैब। देन इसका सेकंड पार्ट है नीड टैब। नीड जनरल नीड जितनी भी है, तो आप जो है ना अपना बस का रिजर्वेशन कराना चाहते तो ऐप करने में मदद करेगा, ट्रेन का रिजर्वेशन कराने में मदद करेगा, यदि आप खाना मंगाना चाहते हैं तो जितने भी ऐप आपने सोचे हैं ये सब ऐप जो है ना इस ऐप में घुसने वाले हैं। मतलब ये आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, और शुरू में यदि कुछ आवश्यकताएं रह जाएंगी तो ओवर द पीरियड उनको इंटीग्रेट कर देंगे, तो आगे चल के आपको किसी अन्य ऐप की जरूरत ही नहीं होगी, नंबर 1। देन जो है इट विल बी हेल्पिंग इन योर निस नीड। तो जैसे किसान है तो किसान को वो बताएगा कि उसे क्या फसल बोना चाहिए, उसको बेस्ट क्वालिटी बीज चीपेस्ट रेट पे उसको अवेलेबल कराएगा। इसके लिए बैकएंड पे स्टार्टअप काम करेंगे, पुलिस काम नहीं करेगी, स्टार्टअप काम करेंगे। वो यदि उसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है तो उसके खेत को जोतने पहुंच जाएंगे। यदि उसको जो है ना पेस्टिसाइड का वो करना है तो केमिकल पेस्टिसाइड तो रहेंगे नहीं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का वो छिड़काव भी कर देगा। देन जो है आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी आपको पहुंचा देगा और आपकी जो है ना फसल को बिकने में भी मदद करेगा। यदि आप हाथ ठेले वाले हैं तो आपको कैसा हाथ ठेला चाहिए वो जो है ना हाथ ठेला आपको अवेलेबल कराएगा। यदि वैसा हाथ ठेला अवेलेबल नहीं है तो उसकी बैकएंड टेक्नोलॉजी टीम
स्टार्टअप जो है वो हथेली क्रिएट करेगा। सो एक माइंड बॉगलिंग जो है ना सपोर्ट सिस्टम जो है ना वुड बी क्रिएटेड इन द पार्ट 3, दैट इज द निश नीड। और वो इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके पटरी वाला, रेवड़ी वाला, ड्राइवर, हर किसी की नीड के लिए क्रिएट किया जा रहा है। दैट विल बी समथिंग चमत्कारी। अब इसके बाद जो है ना चौथे टैब पे आते हैं, वो है इंफॉर्मेशन टैब। तो जैसे गूगल इंजन करता है, ऐसे ही हम जो है आपकी क्या टेस्ट है उसके हिसाब से जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो हम आपको परोसेंगे, तो हम आपकी इंफॉर्मेशन नीड को भी पूरा करेंगे। ऐसा चमत्कारी जो है ऐप जो है उसमें हम लोग पैदा कर रहे हैं। इट इज ऑलरेडी इन ऑफिंग। और ऐसे ही हम चमत्कारी ऐप जो है ना पुलिस के लिए पैदा कर रहे हैं। पुलिस को यहाँ तो आपको टैब दबाना पड़ रहा है, वहां तो टैब भी नहीं दबाना है आपको, वो खुद पढ़ के अपना स्वरूप बदलता रहेगा एंड इट विल हेल्प टू डू ए स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन। आगे चल के हम उसमें ड्रोन को जोड़ रहे हैं, आगे चल के हमको उसको रॉकेट को जोड़ रहे हैं, और वो भी स्टार्टअप के थ्रू जोड़ेंगे। उनको अपनी सर्विसेज का पैसा मिलेगा, क्योंकि पुलिस को दे देंगे तो वो अपने जो है स्टोर रूम में रख लेगा। तो हमें, क्योंकि मैं डीजी हूँ, मैं जानता हूँ हमारी पुलिस कैसे काम करती है, तो हमें जो है ना इसमें उसके दो मकसद हैं। एक तो हम स्टार्टअप को इनकरेज करना चाहते हैं, और दूसरा जो है हम उसे स्टोर रूम की शोभारी बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उनका भी सपोर्ट लेंगे। देन लाइफ टाइम बेसिस पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम IoT डिवाइसेस डिजाइन कर रहे हैं, तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हमसे सीधे बात करेंगे, और उनके लिए हम एक एक्सपर्ट ऐप बना रहे हैं। तो रियल टाइम बेसिस पे हमारे हवलदार रमेश सिंह को विश्व के किसी भी कोने में जो एक्सपर्ट बैठा हुआ है उसकी सेवाएं मिलेंगी। जब जो है एक डॉक्टर दूर से बैठ के ऑपरेशन कर सकता है, तो हमारा पुलिस ऑफिसर एक्सपर्ट की राय जो है ना रियल टाइम बेसिस पे क्यों नहीं ले सकता। हमारे जो है पुलिस ऑफिसर को हिस्टोरिकल डाटा से इन्फ्रेंस ड्रॉ करके रियल टाइम बेसिस पे परोसे जाएंगे। यहाँ पर जो है ना कौन व्यक्ति क्राइम कर सकता है, उसको जो है ना हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे एनालाइज करके उनके फोटोग्राफ दिखाने के लिए पहुंचे जाएंगे। अभी इसी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में है कि यदि मान लो हमारे पास उसका फोटोग्राफ नहीं है, किसी नए क्रिमिनल ने किया है, तो वही ऐप उसको उसी समय जो है कंप्यूटर पोर्ट्रेट जो है ना का जो है बनाने का मदद करेगा। और वो भी अभी तक जो आप जो देखते रहे हो कि जो पेपर में छपते हैं, तो आपने देखा होगा कि आँख के कटे हुए आँख का छपा हुआ है, दांत बंधे हुए हैं, ऐसा बना हुआ है। ये बहुत एडवांस रहेगा। इट विल बी वेरी क्लोज टू द रियल फोटो ऑफ द पिक्चर। इतना क्लोज जो है ना ये बनाएगा, और ये चमत्कारी काम आपको अभी 3 अगस्त तक होने वाला है। उसका फिनाल जो है ना, ग्रैंड फिनाल इज देयर ऑन 1 to 3 अगस्त। तो इस तरीके का केस उसमें है। तो एक कुत्ता आ गया है, जरा इससे हम थोड़ा सा आई एम गेटिंग लिटिल फ्राइटेड। चलिए ओके। अरे शास्त्री जी जरा देखिए। अच्छा सॉरी, इट हैज बीन a real challenge has been resolved. So इस तरीके का जो है, और उसमें एक्सपर्ट ऐप के माध्यम से रियल टाइम बेसिस पे वो उसको फीड मिल पाएगी। तो इतना चमत्कारी विवेचना संभव होगी जो आप लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जो कोई पुलिस फिर आ गया, ओह अच्छा, तो ओ हो गो बेटे गो या चलो सॉरी। तो इतना मेरे ख्याल से आम आदमी बिल्कुल चमत्कृत हो जाएगा ऐसी पुलिस को पाके, वो कृतज्ञ हो जाएगा, और पुलिस जो है ना अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करेगी। अभी तो जो ना बेचारा हमारा हवलदार रामदीन स्ट्रगल करता रहता है, उसकी कोई मदद के लिए नहीं रहता है। फिर पत्रकार उसको छाप देते हैं कि साहब देखो जो ना पुलिस 48 घंटे हुए अभी तो कुछ किया ही नहीं है, उसकी मदद कोई नहीं कर रहा है, और बेचारा वो खुद ही जो ना स्ट्रगल कर रहा है। उसने नौकरी ज्वाइन की थी पुलिस की डंडा चलाने के लिए,
अब आप उससे जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, आप उसको साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। तो हमारा सिस्टम जो है ना उसको डिस्ट्रेस करेगा, डीवर्जन करेगा, 90% जो है ना उसका काम जो है उससे ले लेगा और उसको उसकी भाषा में समझने वाली इन्वेस्टिगेशन लीड देगा। वो 100% केसेस को डिटेक्ट कर पाएगा, 100% केसेस को कन्विक्ट करा पाएगा। जब ऐसी पुलिस का हवलदार राम सिंह आपके सामने से निकलेगा तो आपका हाथ स्वतः जो है ना उसके लिए सलूट करने की मुद्रा में खड़ा हो जाएगा। पुलिस इतनी सम्मानित होगी और पुलिस को इतना रिवार्ड जो है ना दिया सकता है। जो व्यक्ति आम जनता के लिए इतनी रेवेन्यू स्ट्रीम पैदा कर सकता है वो अपनी पुलिस के लिए भी ढेर सारी रेवेन्यू स्ट्रीम भी प्लान कर लेगा, तो उसको वेतन के साथ साथ बहुत सारी रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलना चालू होंगी, तो उसका मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा। क्योंकि यदि जो है बाकी लोग ढेर सारा कमा रहे हैं तो वो भी एक मानव सुलभ व्यक्ति है, उसकी भी इच्छा होती है, जिसके पास जो है उस तरीके से वो कमाने की कोशिश करता है। तो हम उसकी अर्निंग नीड को यदि अपने सिस्टम के थ्रू यदि फुलफिल कर देंगे तो उसमें जो इनके कारण जो नेगेटिव टेंडेंसी है वो टेंडेंसी भी नहीं होगी। मेरे ख्याल से नितिन जी आप सहमत हो रहे होंगे कि इस लवादे में किसी को बहुत अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम जो है स्वतः स्वरूप धारण कर रहा है, स्वतः आपको परोस रहा है। यू जस्ट नीड नॉट टू नो, जो आपको परोस रहा है उसको आप देखिए और निर्णय लीजिए। हम ये जरूर कह रहे हैं कि सिस्टम आपको तने के झाड़ पे नहीं चढ़ा रहा है। यदि आप झूठ बोलेंगे तो आपको भी प्रोसिक्यूट करेगा। तो हम आपको झूठ बोलने के लिए शक्तिशाली बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, आपको हम फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, तो वहां हम आपको धमकी भी दे रहे हैं कि आप झूठ बोलोगे तो हम 182 211 में आपको जेल भी भेजेंगे। झूठ बोले कौवा काटे। सर अब यहाँ पे हम अवस्थी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इतने देर से वो बहुत ही पेशेंसली आपको और हमारे मिनट डिस्कशंस को सुन नितिन रहे जी, हैं। आपको अपनी बात का जवाब मिल गया है ना? Yes, sir. Otherwise you can ask supplementary Yeah. question also, because I must No, resolve your doubt. No, I have. I'm convinced. Okay. अब जो है ना प्लीज। Yes, sir. Thank you for the opportunity, Piyush Dwivedi ji. Yeah. Okay. Thank you, Piyush Dwivedi ji. All right. Am I audible, sir? Yeah. Okay. Fine. Sir, I've been listening to you for such a long time, and I've been following you since you have started this Crime-Free Bharat, and we are very fortunate to have you having this kind of mission that would definitely create a crime-free society and lead us towards the ultimate goal of that is the utopian society, right, sir? And I've been listening to you in this session from the very first moment, and many of my questions are already been answered by a profound speaking, by a profound lecture, by your points. But rather there are certain points that I want some clarifications. These are in my mind, so if you permit me, I want to ask. Please. Yes, sir. Thank you so much, sir. Sir, as the system has been started, the Prime Minister in 2014 inaugurated the Smart Police mission, and the 3 points were the infrastructure of the policing, and the legislative and administrative reforms, and third one was the technological scaling up. So your mission is basically targeting all of three, but specifically for the technological scaling up of that smart policing, right? So and you had already rightly pointed out that National Authority of Scientific and Technological Assistance in Investigation, that would be, I think, the ultimate repository for all the information that's been gathered up, and that all would be by the blockchain, the management system. So that's a completely unhackable system. So that's kudos to you. But the question is, the very genuine question is,
ultimately who would be the I mean ये जो repository है, ये जो national authority है, under whose authority it would be working? Is it working under the government, or it would be a independent authority, so No. that its integrity can be assured, sir? This authority is certainly will be under it will be created under constitution. It will be a statutory body. It will be everything is under government, so it will be certainly under government. It can be depending upon your suggestion, we can bring in whatever the independence you further feel, but otherwise it is independent, because the power of investigation that rests with the police, right? So it is with the police. So this body is a technical जो है ना hub, और ये पूरा चमत्कार जो है, और ये जनता को इंटीग्रेट कर रही है, और जनता को भी 130 करोड़ लोगों को इंटीग्रेट कर रही है. फिर जो है ये टेक्नोलॉजी को इनकरेज कर रही है थ्रू पीपीपी मॉडल. सो टेक्नोलॉजी इज आल्सो बीइंग टेकन केयर ऑफ टू ए ग्रेट एक्सटेंट, एंड देन इट इज क्रिएटिंग मॉड्यूल्स एंड सॉल्यूशन जो कि इसमें रहे जो है ना इसमें अपलोड होंगे. और ये जो अथॉरिटी है इसमें नेशनल अथॉरिटी है, एंड देन इसका एक्सटेंशन स्टेट अथॉरिटी भी है. So they are having all kind of the responsibility, and they would be in position to even not only support the police, they will be supporting volunteers for non-cognizable offences which will be put up in court under section 200 to 204 of the CRPC. तो ये चमत्कार केवल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में नहीं करेगी, बल्कि ये चमत्कार जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में करेगी. आगे चल के तो हम जो है ना सिविल केसेस को कैसे करें, हाउ वी कैन जो है ना हेल्प इन आर्बिट्रेशन आल्सो. तो हम जो है ना बेसिकली वी विल ट्राई टू मेक ए डिस्प्यूट फ्री सोसाइटी, क्योंकि अभी अपन क्राइम फ्री कहते हैं तो कई बार हमारी सोच जो है ना वो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस तक सीमित होती है. फिर अपन उसमें कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, सिविल डिस्प्यूट सभी को जो है ना समेट लेंगे. एंड इफ दैट हैपन्स तो हमारी पूरी एनर्जी जो है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाएगी. एंड कपल्ड विथ the other initiative like Job and Services Rich India, Green Herbal and Nutrition Medicine Free India, that will be transforming our lives. That's why I am saying this initiative, if accepted by the government, it will change the face and fate of this country. अब सवाल उठता है कि यदि इतनी बड़ी चीज है तो सरकार क्या इसको मना कर सकती है? तो यदि हम इसको जनता के सभी लोगों में वो अवेयरनेस पैदा कर लें, एक जन आंदोलन का रूप कर लें, और जब सरकार को ये महसूस होगा कि सब इतने लोग जुड़े हुए हैं, ये सब चाह रहे हैं, तो इंद्र का जैसे सिंहासन हिलता है ऐसा उसे अपना सिंहासन भी हिलते दिखाई देगा कि तो वो जरूर इसको करेगी. उसको ना करने की जो हिम्मत है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि नहीं तो फिर उसका सिंहासन हिल जाएगा. और हर किसी को अपने सिंहासन की चिंता होती है. इसलिए आई एम डबली और ट्रिपली श्योर कि दिस इज गोइंग टू हैपन. राजी तो राजी, नहीं तो कुराजी. या प्लीज. शास्त्री सर के पास शायद कोई क्वेश्चन है सर, आप प्लीज पूछिए. जी प्लीज अनम्यूट शास्त्री. There's a question that should not go unnoticed. When we talk of crime-free Bharat, we are talking of ensuring that there is an FIR, there is a prosecution, there is the whole machinery is set in motion because of what we are going to create. Suppose the FIR is there, the investigation begins. So that one aspect where cases are kept on a back burner when it comes to investigations, cases are closed, and it is shown as, we even have the Hawala case. The Supreme Court judgment says, due to lack of evidence, the case was closed. Now, who's going to create the evidence? Who's going to chase the evidence? Who's going to put it before? What about the anti-corruption law and the entire... there's so much happening, which is the common man is not concerned about it. It is only some activists who go through RTIs, who chase, who find out, who uncover scams, and then the process is on. How are we going to tackle this kind of a situation, and how are we going to engage in this kind of a situation? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है. मैं शास्त्री जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. आपने बहुत ही
अच्छा और सटीक क्वेश्चन पूछा है। देखिए, चाहे हम एंटी करप्शन से का क्राइम करें या करप्शन का क्राइम कहें, चाहे साइबर क्राइम कहें, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम करें, ये जो है क्राइम के हिस्से हैं और उन्हीं आईपीसी की धाराओं के तहत या किसी विशेष एक्ट के तहत बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो इट विल बी टेकिंग कॉग्निजेंस, इट विल बी हेल्पिंग इन इन्वेस्टिगेशन एंड इट विल बी जो है क्रिएटिंग ए चालान आल्सो। हमने आपको बताना भूल गए हैं कि जब ये इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ, चूंकि इसी को ही मालूम है कि क्या चालान है, क्योंकि चालान को तो ये पैकेज करके कोर्ट के लिए मार्क कर दे रहा है, तो ये ड्राफ्ट जो है चालान भी तैयार करके देगा। शायद थाना प्रभारी के बस में नहीं रहेगा वो कहे कि चालानी साक्ष्य है कि नहीं है, क्योंकि सिस्टम को तो वो सब कुछ मालूम है जो एसएचओ को भी नहीं मालूम है। What about long drawn cases in court and they just keep going on till a person dies, and that's where they will not be long drawn because the investigation will be controlled by the investigation app. वो आपको लॉन्ग ड्रॉन करने ही नहीं देगा। वो जहां देखिए, इट इज हेल्पिंग द पुलिस इन रिक्विजिशनिंग। तो सिस्टम कह रहा है कि आपको कहां से क्या चाहिए ये हम बताएंगे, आप तो सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर रखो। जैसे ही उसने डिजिटल सिग्नेचर किए, दैट विल बिकम अथॉरिटी अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी। हमारे एक मित्र ने कहा कि आप कुछ भी कर लो, हम नहीं मानेंगे आपका 91, तो क्या कर लेंगे आप। तो हमने कहा कि आप लोग इसलिए शेर बन रहे हैं क्योंकि हम जो है ना आपसे शालीनता से पेश आते हैं। हमें लगता है कि हम भी ब्यूरोक्रेट हैं, आप भी ब्यूरोक्रेट हैं, हम इस विभाग में, आप दूसरे विभाग में हैं, हम आपको सम्मान देते हैं, इसलिए आपके दिमाग खराब है। जब हम आपको 91 का वायलेटर मान के प्रोसिक्यूट करने लग जाएंगे, उस समय हमारी और आपकी हैसियत बदल जाएगी। आई विल बिकम द लॉ एनफोर्सर एंड यू विल बिकम द लॉ ब्रेकर एंड यू विल बी होल्ड अकाउंटेबल फॉर योर मिसकंडक्ट। आप 91 के वायलेशन के लिए जेल जाएंगे, और उतना ही पर्याप्त नहीं है। कानून ने तो बड़े अच्छे प्रावधान किए हैं, चाहे पुलिस के लिए किए हो ना किए हो, बाकी कानून में तो बहुत अच्छे प्रावधान है। उसमें एक सेक्शन 93 और 94 जो है सीआरपीसी का है, वो कहता है कि जो साक्ष्य आपके दाएं बाएं ना हो जाए तो आप जाइए और प्रीमिसेस को रेड करिए, सर्च करिए और सबको सीज कर लीजिए। तो हम इस बात को बड़े फक्र से हमेशा कहते हैं कि हम तो भाई हनुमान को भेजते हैं। यहाँ हमारे हनुमान कौन है? पुलिस वाले। पुलिस ऑफिसर जाएगा, वो उसको जो है ना सिस्टम 91, 93 और 94 का जो है वो सर्च वारंट कोर्ट से दिलाने में, क्योंकि हमने सब दरवाजे देखे हुए हैं, तो वारंट भी हम आपको दिलाएंगे, वारंट हम दिलाएंगे आपको। और उस वारंट के साथ जो है वो जाएंगे। जैसे हनुमान जी श्रीलंका में गए थे, तो फिर हनुमान जी को फिर तो श्रीलंका को थोड़ा वो जलाना भी चाहिए, नहीं तो वो हनुमान जी नहीं कहलाएंगे वो। फिर हनुमान जी बहुत शक्तिशाली है। एक मिनट, इसी से रिलेटेड, हनुमान जी चूंकि शक्तिशाली भी हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि संजीवनी क्या है और पहाड़ क्या है, तो वो फिर वो संजीवनी को उखाड़ के ले आएंगे। तो जब संजीवनी को उखाड़ के ले आएंगे तो किसी व्यक्ति में दम नहीं होगी कि वो आगे चल के इंफॉर्मेशन ना दे। हमने सिस्टम को इतना कायर बना दिया है कि जो व्यक्ति वायलेट करने वाला है वो मूंछों पे ताव दे रहा है। एक समय आ गया है कि हम उसकी मूंछों के ताव को कम कर देंगे, तो और इसी कानून के तहत कर देंगे और बिना किसी के साथ जाएंगे, और उसमें हम अपने थाना प्रभारी को और किसी पुलिस ऑफिसर को एक्सपोज भी नहीं करेंगे। एक कहानी है, वो मैं इस बार जानबूझ के नहीं सुना रहा हूँ। शास्त्री जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आगे आप पूछिए। हाँ। मतलब एक टेस्ट केस है जिसको मैं सोच रहा था कि आपसे पूछूं कि हाउ वुड अ सिचुएशन लाइक दिस विल गेट कवर्ड अंडर व्हाट यू आर सजेस्टिंग। दिल्ली पुलिस और उनके लोगों को वो अरेस्ट करते हैं, वो एफआईआर दर्ज करते हैं, प्रेस नोट जारी करते हैं। पिछले 10 साल का मैंने रिसर्च किया, जब भी कभी कोई इलीगल वेपन सीज होता है, अरेस्ट होती हैं, तो 50% टाइम से कहा जाता है मध्य प्रदेश के खंडवा खरगोन से सिख लीगर ट्राइब के लोग बनाते हैं और यहाँ पहुँचाते हैं। ये मैं बड़े ऑथेंटिकली और अथॉरिटेटिवली बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी इनके प्रेस नोट और एफआईआर देखे हैं आर्म सीजर के और वो जो कट्टे, तो वो कहते हैं ये मध्य प्रदेश के खरगोन खंडवा सिख लीगर ट्राइब। जब इतना ही सब कुछ पता है और लगातार चल रहा है, उसको हम जड़ मूल से खत्म नहीं कर पाए। आप यदि मेरी लिंक्डइन पे जाएंगे तो उसमें ढेर सारे ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए जो है बात कही गई है। एक ऑटोमेटेड सिस्टम इज अबाउट द बस्टिंग
नेटवर्क ऑफ द इलिसिट आर्म्स, वो जो है बनाने वालों को, बेचने वालों को, एंड यूज करने वालों को, सबको समेटने वाला है। उसके ब्रह्म चक्षु से कोई नहीं बचेगा, ना ड्रग बचेगी, ना जो है ना ये बचेंगे। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आगे चल के आप महिलाओं से कोई छिड़कानी भी नहीं कर पाएगा। तो it is providing that support for the weaker and section of the society also. It will be empowering senior citizens also. There's a very specific module, यदि आप देखेंगे, जो हमने होम मिनिस्ट्री को भी चिट्ठी लिखी तो उसमें लिखा था कि इन मॉड्यूल पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारी एनर्जी दूसरी तरफ ज़्यादा चली गई है तो उन मॉड्यूल पे अभी काम रुक गया है। आई एम वर्किंग ऑन दिस आल्सो, दैट इज एक्सीडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपकी जो एक्सीडेंटल डेथ है, जिस दिन वो सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा 50% डेथ विल कम डाउन। और यदि जो वॉलंटियर ऐप में जो हमने प्रावधान किए हैं उन सबको दोनों को कपल कर दिया जाएगा तो एक्सीडेंट होंगे ही नहीं, बिकॉज एवरीबडी वुड बी ड्राइविंग वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली। यदि ऐसा होता है तो हम हर साल 1,60,000 लोग जो एक्सीडेंटल डेथ में मरते हैं, हम उस प्रीशियस लाइफ को बचा पाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ अगेंस्ट इन मंच के साथ माध्यम से कि इंश्योरेंस को और बाकी लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। तो जो बैंक में जहाँ फ्रॉड हो रहे हैं वो आके हमसे पूरा टाई अप करें, हमसे एमओयू करें, इंश्योरेंस वाले हमसे एमओयू करें, हम उनके ढेर सारे पैसे बचाएंगे और अपने इन्वेस्टिगेशन में वो सब चीज़ें डाल देंगे तो वो ऑटोमेटेड ढंग से होती रहेंगी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस मंच के माध्यम से मैं इंश्योरेंस कंपनियों को, बैंक्स को आहूत करता हूँ कि प्लीज़ ज्वाइन अस फॉर योर सेल्फिश रीजन। हम आपके थाउजेंड्स करोड़ जो है ना बचा देंगे और आपके सिस्टम में पब्लिक की आस्था बढ़ेगी तो आपका बिजनेस भी और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी तो अवेयरनेस के नाम पे हमने इतना भय फैला दिया है कि समवेयर इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग देयर बिजनेस आल्सो। तो बाय ज्वाइनिंग हैंड विद अस वी विल बी क्रिएटिंग दैट फेथ। तो दिस विल become a kind of another revenue for the national authority. That is a wonder. I will interrupt here, sir. That is a wonderful idea you have. And sir, अभी हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं सर, वो शुरू से काफी देर से वेट कर रहे हैं, हमारे बीच में हैं, और मिस्टर डॉक्टर प्रेम अग्रवाल। सर वेलकम टू आवर शो। सर आप काफी देर से सर हमें सुन रहे हैं, पिछले तकरीब 2 घंटे से। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज अपना कुछ व्यूज और सजेशंस बताएं और क्वेश्चंस पूछें मैथिली सर से आप। गुड इवनिंग। अ वेरी नाइस इनिशिएटिव टू interweave and integrate information technology with investigation. I have some experience of the criminal justice system because I served for some time as a judicial magistrate, and thereafter I resigned and my passion was teaching, so I have joined teaching law, and I am a regular trainer faculty in National Judicial Academy and the State Judicial Academies. So from my little experience, with this noble initiative taken by Maithili ji, it's really a very noble initiative. But then, whatever I heard and after I gathered everything from his YouTube videos, I was reminded of utilitarian theory of law, which speaks of that a person will abide by law or obey law when the advantages of obeying law outweigh the disadvantages of not obeying it. Am I clear? Advantages of obeying law, when they outweigh the disadvantages of not obeying it, you need not, stand with the cane in front of him. He will obey the law by himself. I was impressed by one of his examples in one of the videos, Maithili ji, where he said he went to the chief minister and tried to explain to him that, see, this is the real condition. Now, if you abide by it, this will be the consequence. If you don't abide by this will be the condition. So, if we can make our political masters, the political executives, aware of such things in such a professional manner, I think change may come, but it may take time, but it will come. But the problem in criminal justice system
as because I was one of those persons who deposed before Mallimath, Justice Mallimath also, when I was one of the faculties in National University of Juridical Sciences. There, I had an interaction with Justice Mallimath, and the first and foremost what we need is police reforms. He very frankly has said in the report, all of us know, that police in India is overburdened. See, I am associated with police training also. So, and how is it overburdened? The same police force has 3 duties. Priority duty number 1 is VIP duty. Priority number 2 is law and order. Priority number 3 is investigation. So, howsoever important investigation duty may be for a particular case, if a VIP comes, he'll have to leave everything and run. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. There must be, according to Mallimath, there must be 3 cadres of police. One will take care of the VIP duty, the other the law and order duty, and the other the investigation duty. But we know that none of our political parties are serious in police reforms. They will go into the cold storage. So what next? This idea of this gentleman, I really hail him, that he is trying to bring transparency, expediency, and the IT into the investigation system to make it almost foolproof. But the problem is, there will be another human being who will be coordinating the whole thing. And this human being, if he is a stooge of the ruling political party, then how will you manage? I can cite one example for you. In our area, a senior IPS officer, am I audible? Am I audible? Yeah, you are very much audible. Yeah. A senior IPS officer in our area, he had this desire always, posted as an SP, Superintendent of Police, that whenever any minister used to come in that district, he used to showcase before the minister that his wife is running a blind school, whereas he was not doing anything. It was run by some other NGO. And the secretary of that blind school had the audacity to refuse to allow those children to be audienced by the minister, the visiting minister, because the children were having exam 2 days after that. Now this SP became so furious because he was very close to the political party who was ruling at that time. He said, "Hum tumko dekh lenge." And 7 days after this incident, this person, the secretary, was picked up from his small business shop and he was detained for the entire day in the police station without registering any FIR, without any formal arrest. Now, if this is the high-handed attitude of police personnel, although that is a very small number, I presume, but then that is there. In spite of installing all the systems in place, if as a human being at the micro level, we don't change, it's very difficult to implement. Although it is a very welcome move, and I wholeheartedly support that something at least it has come out. And this CCTV thing, I saw it in Singapore. Whatever Gupta ji is saying, exactly the model they are doing in Singapore. Every 5 feet they are having strong CCTV cameras, and nothing is beyond the ambit of the CCTV cameras. So there is no question of any manipulation. So all that is very welcome. But then, unless we free our police from the clutches of the political masters by, say, installing as independent police commissions for their appointment and transfer, if that is not possible, it's very difficult to make the criminal justice system neutral and effective. Another word I want to say is regarding the public prosecutors. Therein, there is another problem. The public prosecutors, they get more paid for not working or working less. So how to incentivize their working? We do not yet have a proper locus standi for the advocate of the de facto component in our CRPC. See, the defense counsel works more because he gets paid more. If we have a locus standi for the de facto complainant's advocate, I think that would go a long way in balancing this unholy nexus
between the investigators and the prosecutors. I am speaking this as a presiding judge in a criminal court. I think this was some food for thought which I contributed in today's discussion. Thank you. Oh, thank you very much. आपने बहुत ही अच्छी बात कही और nobody can really ignore that hard fact. But आप शायद ये भूल रहे हैं कि ये सिस्टम जो है हर चीज कैप्चर कर रहा है. यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो हमने कहा कि वो परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जनरेट करेगा. तो आगे चल के इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पुलिस के द्वारा किया जाना संभव ही नहीं होगा, बिकॉज फ्रॉम वेयर ही विल गेट द अथॉरिटी. He will not be having the time to do all these kind of things, because सिस्टम तो उसको बाकी चीजों में घेर के रखेगा, तो उसको फालतू का काम करने का जो है मौका नहीं रहेगा. और दूसरी बात, वो किसी को कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है. हमारे सभी थानों में 8-8, 9-9 कैमरे लगे हुए हैं. हम केवल उसको पावरफुल नहीं बना रहे हैं, नहीं तो वो कौन किसको लेके आ रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है. हमें थोड़ा सा अपनी नीयत साफ करने की ज़रूरत है. आपकी ये सब समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी. तो आई रियली अप्रिशिएट द थिंग्स. और कई बार हम क्या कहते हैं कि अकेला नेताओं को गाली देते हैं. ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है. हम जो है अपने लाभ के लिए नेताओं को रास्ते बताते हैं. हम खुद नेताओं के पास जाते हैं और नेताओं से इंटरफेरेंस नहीं मांगते हैं, बल्कि उनको सुझाव देते हैं. एंड वी बिकम द पार्ट ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो ये टाइम हैज कम कि हम नेताओं को गाली देना बंद करें. नेता जो है ना ब्लेम करने वाले बात नहीं है. इट इज़ मोर क्वेश्चन ऑफ दैट कि हम छोटे लाभ के लिए ये सब करते हैं. अब देखिए, जो नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस, इसमें 2 क्राइम जो है ना विशेष तौर पे बनाए गए हैं. एक क्राइम है कि जब इंटरनल व्यक्ति किसी भी चीज को, जो क्योंकि उसके नॉर्मल ड्यूटी कोर्स में यदि उसके नॉलेज में आई है, इफ यू यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर अदर देन द इंटेंडेड पर्पस, इट विल बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन अवेलेबल विथ मिनिमम 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट. इसके जो बैकएंड इंजन बनाए गए हैं वो लॉग से लेके हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं. दे विल कम विद इन नो टाइम के ही इज वायलेटिंग हिज कंडक्ट एंड इट विल जनरेट ए FIR एंड वो व्यक्ति 7 साल के लिए जेल चला जाएगा. हम जो है ना प्रबुद्ध वर्ग को डिपेंड जो है ना बिलोंग करते हैं, हम लोग बिल्कुल जेल नहीं जाना चाहेंगे, तो वी विल नॉट डू दैट. दिस इज वन. एंड सेकंड जो है, जो हैकर और इस सब तरीके की बात कही गई है, दिस इज अनदर लॉ इन दैट. इट इज ऑन द सिमिलर लाइन जिसमें IT एक्ट में ऑलरेडी प्रावधान है, उसी से सिमिलर प्रावधान को ड्रॉ किया गया है. और उसमें ये कहा गया है कि whosoever will try to even enter in our system, that will also be an offense. तो इंटरफियर करना तो संभव ही नहीं होगा. यदि वो इंटर करने की भी कोशिश करेगा, और उसके बैक एंड पे 2 जो है ना सिक्योरिटी सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, जो हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, हर लॉग एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं, लिहाजा वी वुड बी इन पोजिशन टू. अच्छा, उसमें भी वो 7 साल का मिनिमम पनिशमेंट है, नॉन अवेलेबल है, और प्रूफ चूंकि सिस्टम पीछे से कैप्चर ही कर रहा है, तो उसको जेल जाना उसको भी पक्का ही रहेगा. तो आगे समय में हैक करना, ये करना, इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट. एंड शास्त्री जी जो है कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज. I was listening to Dr. Prem Kumar and I felt that I should intervene, and the idea is not to pit one institution against the other, but I don't give the opportunity to one institution to sit on a pedestal and pass a judgment over the working of the uniformed force in a very blanket manner. Aberrations are everywhere, and if we want to give people a crime-free society, we need mool-chool reforms in the Indian judicial system. And I very strongly feel about it. And I have seen corruption closely, and I have covered it as a journalist in the Hindu for long years. There are cases, you were talking of one police officer. I can talk of chief justices of the High Court, and I can talk of those who have become chief justice of India, and I have done stories. And absolute irresponsible behavior. So I would not say, let us not treat this as a forum where we pit one institution against the other. We are talking of police reforms. Let us restrict to that. And if you want me, I can even mention the cases that I'm talking about, where I have published and nobody could touch me.
because I'm above board in whatever I print or say. शास्त्री जी, No, you are absolutely right. जस्ट You are absolutely. मैं थोड़ा सा जवाब देता हूँ। शास्त्री जी, हम जो है इस सिस्टम में अकेली पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, जुडिशरी की भी मदद कर रहे हैं। नंबर 1, आगे चल के जुडिशरी के जो समन्स वारंट से लेके हर चीज जो है ना, वो हमारा सिस्टम उनको मदद करने में, उनके सिग्नेचर होंगे, हम उनके विक्टिम से लेके हर किसी की कन्वीनियंस को फैक्टर इन करते हुए वो समन्स वारंट जारी होंगे। तो आपके यहाँ यदि शादी भी है तो सिस्टम विल फैक्टर इन कि वो शादी के दिन आपकी जो है ना पैसी ना लगे। नंबर 1, रियल टाइम बेसिस पे जो उनकी प्रोसेसेस हैं, दे विल मूव टू द वॉलंटियर ऐप एंड वॉलंटियर विल जो है ना एग्जीक्यूट देम, एंड उसमें एग्जीक्यूशन का प्रूफ विल बी कैप्चर्ड बाय द ऐप इटसेल्फ, एंड इट विल बी उसका जो है एग्जीक्यूट हो गया है, इसका प्रूफ विल बी सबमिटेड टू द कोर्ट डायरेक्टली थ्रू द सिस्टम। उसमें बीच में कहीं पुलिस नहीं आएगी। नंबर 1। नंबर 2, वी हैव डिजाइन्ड एंड वी आर रिफाइनिंग ट्रायल थ्रू द वीडियोग्राफी। तो उसमें जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियोग्राफी होगी। आगे चल के जो है ना लोगों को कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा। कोर्ट में जो है ना कोर्ट के वो बैठेंगे, कोरोना जैसी उसमें थोड़ा सा फायदेमंद भी रहेगा। उसका जो पीए है वो अलग कमरे में बैठेगा, प्रोसिक्यूटर अपनी जगह पे होगा, डिफेंस लॉयर अपनी जगह पे होगा, विटनेस अपनी जगह पे होगा, और विटनेस को थ्रेटन नहीं किया गया है। ऐसे प्रोटोकॉल उसमें बनाए गए हैं कि उसको थ्रेटन करना भी संभव नहीं होगा। इट विल बी रीडिंग द फेस एक्सप्रेशन ऑफ गवाह, एंड even it will say that this gawai is not in position to depose. It will capture the body language and things and of the defense lawyer also. मैंने अभी गवाही दी थी, मेरी गवाही 5 दिन चली थी। I know that कि जो है ये डिफेंस लॉयर हैं, ये जब एक डीजी को थ्रेटन करने की औकात रखते हैं तो आम आदमी का तो मालूम नहीं क्या काम हाल करते हैं। खैर, I could fix him. So the system would be capturing these kind of the thing, and जहाँ पर वो उसका contempt की कैटेगरी में आएगा, उसको contempt की तरह परोस देगा उसको। यदि जो है जहाँ पर जो है एथिक्स का वायलेशन होगा, उसको विथ प्रूफ जो है वो बार काउंसिल के पास ले जाएगा। And similarly, judiciary should have total transparency. We should have a public जज के पास ले जाएगा। तो it is basically not only for the police, it is basically system is keeping everybody is in place. वो कह रहा है पब्लिक से कि देखो तुम सही रिपोर्ट करना, गलत करोगे तो तुमको भी जेल भेजेंगे। वो कह रहा है डिफेंस लॉयर से तुम अपना काम ठीक से करना, पुलिस से कह रहा है तुम अपना काम ठीक करना, एक्सपर्ट से कह रहा है तुम अपना काम ठीक करना। इट इज समथिंग लाइक जैसे चौकीदार कहता है जागते रहो जागते रहो जागते रहो। तो सिस्टम अंदर से जागा हुआ है, एंड उसके अंदर इतनी सारी प्रोसेसेस हैं, और ये सिस्टम जो है इट इज नॉट बीइंग एज ए कमांड पोस्ट जहाँ पे आईओ कमांड दे रहा है। This system is guiding IO to conduct investigation. It is giving them investigation lead in a common language. It is not giving them the raw data. तो जितनी भी जिसकी न्यूसेंस है, ये सिस्टम काफी हद तक उसे पकड़ ले रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेटा को बिलोंग क्यों ना करता हो। ये तो हम वर्तमान लॉ में कर पा रहे हैं। इस नेशनल अथॉरिटी को लॉ एडवोकेसी का भी पावर दिया गया है। तो आगे चल के जहां जहां उसको कानून की जरूरत होगी, उसके बारे में भी वो एडवोकेसी कर पाएगा। नहीं, I welcome your all your moves. That's okay, but delivering result within the 4 walls existing. What I wanted to say was that whatever we do, either in change in law or change in technology or using technology, it is the human being who will be using it. My idea in sharing whatever I said was that we have people in every stream, in every section of the society who have to be, or at the micro level they have to change. Shastri ji just now said, hello, am I audible? मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। Hey, am I audible now? Am I audible? Yeah, I can hear Hello? you. Yeah, I can hear you. I can hear you. Yeah. Now, my intention was not pitching one institution against the other. My idea was that there is a degradation of values everywhere in the society. Whether it is the political executive, whether it is the judiciary, whether it is the police, whether it is the press, journalists भी सब
everywhere there's even in the teaching community. The thing is that we must build a system where we can ensure that the advantages of obeying law outweigh the disadvantages of not obeying it. If we can provide something of that sort, as you are trying through this system, then law will be properly obeyed. That was my contention. I am not trying to pitch one institution against the other. I don't have any such intention. I was Yes, sir. We got you, sir. Yes, sir. Definitely. Thank you. I was misunderstood by Shastriji. There is no intention of pitching one institution against the other. Yeah. I often say that we are living in a society where leaders have become dealers, where lawyers are becoming liars, doctors are becoming dacoits, and teachers are becoming cheaters. Because there is a degradation of values in every wing of the society. Now, how to bring out that transformation? That is a big challenge. That is प्रेम जी जो है ना आपने जो बातें कही हैं, we have taken it in a very right spirit and we welcome it. And what we intend to say कि system within law के तहत जो है, it will be in position to help each section of the society. एकदम यही. That is what I appreciate. लॉयर को मदद करेगा, वो जज को मदद करेगा, सबको मदद करेगा. तो हम उसको नेगेटिवली इंटरप्रेट करने की बजाय लेट्स ट्राई टू इंटरप्रेट इट पॉजिटिवली. एकदम. पीयूष जी हमारे साथ एक गेस्ट और थे, उनको आपने अभी तक मौका नहीं दिया है. आई थिंक ही शुड गेट दैट अपॉर्चुनिटी. he was from a political party. I request he should be brought here. Admin, please help to bring him because it is not good. He did not get any opportunity. He must get opportunity to speak. Admin, please bring Mr. Bisal. Because he is the person who has not spoken even a word. And I am feeling guilty that probably he has not given opportunity. So I really sincerely apologize. And I request that please come forward. And admin. Whether Mr. Bisal is still available? Admin, are you there? Admin. You give in the comment box whether he is available. If he is available, I request that he should be requested to come here. Our team has invited him, and I am feeling really sincerely apologetic that he has not been given opportunity so far. And I beg pardon for on behalf of my team. If possible, please contact him and bring him over here. He should ask at least one question, and he should have the full sense of participation. Otherwise, somewhere I will feel that I am failing in my duty. Admin, please give him a telephonic call. And I think he's some technical issue. Okay, maybe some technical issue. So if the I think he's some technical issue. Okay, so if there's no other question, probably we can consider of closing it because it is already 2 hours and 23 minutes. So if there's any question, you are welcome to do that. And let the nodal officer, Mr. Piyush, please join, because without you, how that it will be session will not be concluded. I have one question. Please. Is there any concrete plan to go ahead with this reforms which you are suggesting? At least any pilot project which you are planning? Let me elaborate on it. Basically, we were working on a national police mission, GRP help app, and investigation support system. This crime-free Bharat is offshoot of that national mission because that was dedicated for railway crime. We thought and people requested us कि साहब जो है आप तो railway crime की अकेली बात करते हैं क्योंकि आप busy railway रहे हैं और what about the other crime? So then we thought a bigger picture कि क्या करना चाहिए, and we came out with the this crime-free Bharat through automated investigation support system with the 21 technology, integrating whole population, all experts, and each section of the society. Now, in 2019, this has been recognized as a national police mission. So now it is a
national police mission. And basically today's discussion was intended on a peer group review. It was the peer group review of this mission only. And Mr. Piyush Dwivedi, in beginning, he has tried to give little details. And basically, what I was expecting from my guests, they should read the document, and if they can integrate their experience and peer group review, then discussion would be little more holistic. But nothing doing. It was a very meaningful discussion. So, what I intend to say, it is a recognized national police mission by the Government of India through BP and R&D. I have written a book, Crime Free India, Crime Free Bharat, that will be published through the BP and R&D. We are working with the 47 universities, 3-4 universities, they are already in pipeline. So very soon we will be crossing a mark of 50 universities. And you must be knowing that from 1st to 3rd of August, there is a Smart India Hackathon. So our mission is there with the tall problem statement. So almost 250 or odd national engineering college and IITs, they have participated. 65 were shortlisted in the second round, and now the grand finale is there from the 1st to 3rd of August. So lot of things and lot of nut bolts they have been already created. All are being they are being created. We are not being satisfied with the one version. So even when it is delivering results, we are working for its refinement through the version 2, version 3, version 4. So there's a detailed project monitoring tool which is working with us to help us to monitor. Because I am single-handedly handling so many universities, it is mind-boggling. Sometimes I forget कि मैंने किसको क्या काम दिया. So you can really understand and appreciate my situation. So is this supported by Government of India? It is supported by Government of India. It is a national police mission, duly recognized. अभी Government of India का support तो हम तब कहेंगे जब हमने basically I had written a DO letter to PS of Honorable Prime Minister. I had written a DO letter to PS of Honorable Home Minister, and requesting, I attached all my presentation and all the documents, including National Police Mission document, and I said that I am having something which will change the face and fate of this country. This is my presentation. Good. Give me 15 minutes time. Now it is more than a year. I am still waiting for appointment. क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप यदि उनको बच्चे का भी कुछ आ जाता है तो उसको बुला लेते हैं. हम भी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी अमित जी हमको जरूर बुलाएंगे. और डीजी ने यदि कोई इतनी बड़ा काम ऑलरेडी कर लिया है जिसमें कि सरकार का पैसा भी खर्च नहीं होना है और सिस्टम आ जाएगा. We just need the blessing of these two individuals, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and Honorable Home Minister Shri Amit Shah. Very good. No, we are hopeful. We are very hopeful because it should attract their attention. The revised DO letter making them request again कि साहब जो है इतना हो गया है. Please give me 15 minute time. I had requested my director IB also कि आप मुझे DGs conference में बुलाइए so that I can make presentation before all DGs. हम जो है DGs से लेके सभी को invite कर रहे हैं धीरे-धीरे इस प्रोग्राम में कि देखिए यदि हम ऐसा कुछ बात कह रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि पैलेटेबल नहीं है, डुएबल नहीं है, हम सही ही बता रहे हैं, तो आप मुझे चुनौती दीजिए. आप अदरवाइज भी जुड़िए समझने के लिए कि कैसे हो रहा है. तो आप जुड़ेंगे चाहे ऐसे या वैसे, इसमें फायदा है. नंबर 2, हम इसको जो है ना जन आंदोलन बनाने के बहुत जोर से मूड में हैं. तो हमने इसमें एक स्कीम चलाई थी कि 1:5 हर व्यक्ति अपने सर्कल के क्लोज 5 लोगों को जो है ना रिक्वेस्ट करे और वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो अपने 5 और उसके 5 और उसके 5 ऐसे हमें 130 करोड़ लोगों को, सभी पूरे पॉपुलेशन को जोड़ना है और उन्हें अपने सेल्फिश रीजन के कारण भी जोड़ना चाहिए. जब हम उनको 4-4 स्ट्रीम दे रहे हैं तो उनको स्ट्रीम तब तक तो नहीं मिलेगी जब तक वो इससे जुड़ेंगे नहीं.
तो बाकी चीजों को छोड़ दें, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, क्राइम फ्री भारत को सबको किनारे कर दें, केवल अपने व्यक्तिगत हित के लिए 4 रेवेन्यू स्ट्रीम पाने के लिए ही भी हमारा अनुरोध है कि कृपया जुड़िए, इसमें आपका भला ही भला है। क्राइम फ्री भारत तो मुफ्त में मिलेगा, एक बटन दबाओगे तो सरकार को 1,30,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। आगे चल के हम जो है इनकम टैक्स और बाकी टैक्सेस को भी चाहे तो बंद कर देंगे, इतना रेवेन्यू जो है ये this will be created. That's a great idea. Great idea. Very good. Sir, with your liberty, I want to conclude this session. I am sorry to Mr. Vishal that he was unable to ask any question in this interactive session. So today we have discussed almost 2.5 hours, and we have covered majorly very vital points, starting from public and police coordination. Then Mrs. Taslima Khan ma'am has also put a effort that there should be a monthly wise meeting between CRPF and the police force. And Sastry sir has said that there has to be awareness among the public, and to which Mr. Gupta sir has replied that we are working on the development of the technologies through PPP model, that is public-private partnership model, which will work on the basis of blockchain technology. Thereafter, we have also talked about that how to improve the trust level between a common civilian and a police force. Thereafter, we have also talked about how to control the investigation through app. A very important question is asked by Mr. Prem Kumar Agarwal, that he has raised the question over the functioning of the public prosecutor, saying that public prosecutor get more payment for not working. Means they get payment for less working instead of payment for working. So with this, sir, today we have wonderful discussion, and I would like to thank all the eminent guests which have given their valuable times. Thank you so much, sir. So I also convey my thanks to all the guests and to you and to my admin team, without whose support this session would not have been possible. So yeah, I will be failing in my duty if I really properly thank our admin party. And नमस्कार, अगले सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।